So very good evening, all the participants. Today is this is our fourth session on Ind AS. Uh, we have with us here Neeraj Mittalji. He is the visiting faculty of ICI also, and he has over a decade experience of coaching and nurturing the young talent as well as the CA students, plus the professionals like us. So we are blessed to have with us Neerajji today. And on the academic ground, he is a fellow member of the Institute of Chartered Accountant of India as well as an MBA graduate from University of Pune. And he has been a speaker for direct taxation as well as accounting, and has received a number of awards for his delivery in northern region for Nikasa as well as for Sikasa as well. So it's a pleasure to have him with us today. And over to you, Neeraj ji. We will take query session. You'll take query session along with the same, or you want the queries to be answered at Sir, the end of the session? as your wish, sir, as your wish. No, as per your convenience. So, चलिए सर देख लेते हैं, एक बार शुरू करते हैं, फिर okay, देखते हैं जैसे okay. भी Let's होता है, start राइट? and then Okay. Over Okay, to you, Neeraj ji. so thank you so much, Nitish ji, and good evening to all participants. And thank you, Nitish ji, for inviting me as a speaker here and giving me this opportunity to speak in front of all of you. So it's very thankful to you. And guys, let's come to the today's topic. Today's topic is Ind AS 36. And yes, before starting the topic, of course, today's Holi. So let me wish you very, very happy Holi to all of you. Thank you so much. Thank you. Good evening, Bhavi. And Ind AS 36, today's topic is, if concerned about today's topic is about Ind AS 36, impairment of assets. So before starting this Ind AS impairment of assets, I have a great example for all of you. So let me start with this example. Yes, because shortage of time, I have written this example on my notes. So example, I think Nitish ji, this example is visible to everyone. Nitish ji? It's visible, Neeraj ji. Okay, sir, this is visible? Yeah, visible. Okay, so let me start the discussion with the help of this example. Suppose there is a shop, Xerox shop, जो कि Xerox मशीन है, जिनके पास एक सिंगल मशीन है और जो 1 अप्रैल 2018 में 2018 में इन्होंने 50,000 रुपीज़ की ये एसेट्स परचेज की है एंड यूजफुल लाइफ इस एसेट की 5 ईयर्स है, रेजिडुअल वैल्यू 0 है एंड एसएलएम मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन फॉलो कर रहे हैं, तो पर एनम डेप्रिसिएशन जो हमारा बनता है वो 10,000 हो जाता है. बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अबव, जो कैरिंग अमाउंट है 31 मार्च 2020, इस एसेट की अगर आप देख पा रहे हैं 2 साल का अगर हम डेप्रिसिएशन लेस करते हैं तो 20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लेस होने के बाद द वैल्यू कम्स ऑन एज ऑन 31/3/2020 30,000. So on the balance sheet date, if I talk about it, I would like to give a situation. If I'm talking about the balance sheet date on 31st March 2020, अभी हम देख पा रहे हैं ये एसेट 30,000 की शो हो रही है हमारी बैलेंस शीट में, जो इसकी कैरिंग अमाउंट आ रही है. बट बैलेंस शीट अमाउंट पे जब हमने रिव्यू किया तो इसकी एनआरवी जो थी, एसेट की जो एनआरवी थी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, वो सेल के वक्त अगर हम इसे सेल करें तो ये 20,000 इसकी एनआरवी आ रही है. एंड इफ आई टॉक अबाउट पीवी ऑफ द कैश फ्लोज फ्रॉम द असेट्स बाय यूजिंग इन बिजनेस, अगर इसी असेट्स को हम फर्दर अपने बिजनेस में यूज करते हैं रिमेनिंग 3 ईयर्स, राइट, ड्यू टू चेंज इन बिजनेस कंडीशंस, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो 25,000 आती है. इफ आई टॉक अबाउट बोथ द टूज वैल्यू, दोनों वैल्यूज के बारे में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो एक वैल्यू 20,000 रुपए की आ रही है और एक 25,000 रुपए की आ रही है. जो वैल्यू 25,000 की आ रही है वो असेट को फर्दर यूज करते हैं अगर हम 3 साल के लिए, और तो वो वैल्यू हमारे पास जो कैश फ्लोज आएंगे उस असेट से, जो वैल्यू इन यूज पर जो कैश फ्लोज आएंगे उनकी प्रेजेंट वैल्यू को शो कर रही है. और जो ये वैल्यू है एनआरवी, ये अगर एसेट को आज मैं सेल कर देता हूं तो इसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू जो मेरे पास, आई कैन गेट द मैक्सिमम अमाउंट फ्रॉम दिस असेट, दैट इज द 20,000. सो आई थिंक अगर मैं बात करूं इस असेट को जो हम शो कर रहे हैं बैलेंस शीट में अपनी,
हम इस एसेट को शो कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं बुक वैल्यू 30,000 शो हो रही है, कैरिंग अमाउंट 30,000 है, बट एंटिटी मैक्सिमम एबल है अमाउंट गेट करने में 25,000, विच इज द हायर ऑफ टू अमाउंट्स, दो अमाउंट्स का हायर है। 20,000 हमें मिल रहा था एनआरवी से, नेचुरलाइजेबल वैल्यू से, एंड अगर हम बात करें 25,000 हमें मिल रहा था इस असेट की वैल्यू इन यूज से। मीन्स इफ फर्दर आई यूज दिस असेट, एंटिटी यूज दिस असेट फर्दर 3 years, so entity can get the maximum amount of 25,000. so अगर आप देख पा रहे हैं हमने इसे 30,000 पे शो किया हुआ है रिपोर्टिंग डेट पर, व्हाट एंटिटी 25,000 रुपए ही मैक्सिमम टू मैक्सिमम गेन कर सकती है इस एसेट से। तो आई थिंक इंडेस की दुनिया में जहां भी हम किसी भी चीज को रिकॉर्ड करते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी नोटिस दैट इंडेस मोस्टली चीजों को फेयर वैल्यू पर रिकॉग्नाइज करता है। अगर हम देख पा रहे हैं तो 30,000 में हमने इसे शो किया हुआ है, बट मैक्सिमम इस असेट से हम जो गेट कर सकते हैं, मिल सकता है, रिसीव हो सकता है, वो 25,000 है जो हायर है। सो एक इंडेस अपनी रिक्वायरमेंट लेके आता है जिस इंडेस का नाम है 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स। ये इंडेस कहता है कि दिस अमाउंट शुड बी रिड्यूस टू द रिकवरेबल अमाउंट। व्हाट इज द रिकवरेबल अमाउंट? रिकवरेबल अमाउंट इज 20,000 और 25,000 विच एवर इज हायर। मीन्स अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो ये एसेट हमने शो की हुई है 30,000 पे अपनी बैलेंस शीट में रिपोर्टिंग डेट पे, बट इस एसेट से वी कैन गेट ओनली 25,000, सो इट शुड बी reflect at a rupees 25,000 and we have shown it as 30,000. that is not the fair, ये कि फेयर नहीं है, जो कि फेयर नहीं है, हमने इस एसेट को गलत वैल्यू पर रिकॉर्ड किया हुआ है। तो एक इंडेस 36 आता है जो अपनी रिक्वायरमेंट शो करता है, जो अपना ऑब्जेक्टिव शो करता है। दिस इंडेस सेज दैट यू शुड इम्पेयर दिस एसेट, आपको ये एसेट इम्पेयर कर देनी चाहिए कितने रुपए से? 5,000 रुपीज से। इफ आई टॉक अबाउट एज पर इंडेस, अगर मैं बात करूं एज पर इंडेस 36, द एंटिटी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द असेट्स वैल्यू टू इट्स रिकवरेबल अमाउंट बाय इम्पेयरिंग रुपीज 5,000 मीन्स 30,000 minus 25,000, reducing the assets, and this impairment loss should be transferred to P&L account. अगर मैं बात करूं इस 5,000 के गैप को वी शुड ट्रांसफर टू प्राइमा फेसिली P&L अकाउंट में, मुझे ये भेज देना चाहिए। अगर मैं एंटिटी के इस लेवल की बात करूं, क्वेश्चन आता है, आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑब्जेक्ट ऑफ द दिस स्टैंडर्ड। व्हाट हमारे माइंड में बहुत सारे नए क्वेश्चंस भी आते हैं इस इंडेक्स को लेकर। क्वेश्चंस क्या आते हैं? अगर हम बात करें इस इंडेक्स को लेकर कुछ सारे क्वेश्चंस आते हैं। हमने देखा इस इंडेक्स में कैरिंग अमाउंट जो भी एसेट्स की आ रही है और उसका रिकवरेबल अमाउंट जो है, अगर उन दोनों में गैप आ रहा है तो हमें उसे रिकवरेबल अमाउंट तक ले जाना चाहिए। आपके किसी भी डाउट आने से पहले मेरा आप लोगों से एक डाउट है और मैं चाहता हूं आप लोग मेरे इस डाउट को क्लियर करें। कोई भी आप में से डाउट है रिवैल्यूएशन में और इंपेयरमेंट में और असेट पर नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगने में, तीनों में क्या डिफरेंस है? क्या कोई बता सकता है? रिवैल्यूएशन में असेट्स का हम रिवैल्यूएशन करते हैं, पीपी का रिवैल्यूएशन करते हैं, इंटेंजिबल्स का रिवैल्यूएशन करते हैं, या फिर हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, अमोर्टाइज करते हैं और हम इंपेयर करते हैं। तीनों में कोई बता सकता है डिफरेंस क्या बनता है? तीनों में डिफरेंस क्या आता है? कोई भी पार्टिसिपेंट में से अगर बताना चाहे एक बार। रिवैल्यूएशन क्या है? किसी भी पीपी का रिवैल्यूएशन करना, किसी भी पीपी या एसेट को डेप्रिशिएट करना, और या फिर तीसरी चीज इंपेयर करना। तीनों में डिफरेंस क्या है? कोई भी? ओके, नो पार्टिसिपेंट्स आर इंटरेस्टेड टू गिव मी दिस आंसर। यस प्लीज। सर डेप्रिशिएशन हम तब लगाते हैं, डेप्रिशिएशन बेस होता है सर हमारे यूसेज पे। जैसे जैसे हम डेप्रिशिएशन मशीन को यूज करते हैं वैसे हम डेप्रिशिएशन लगाते हैं सर उस पर। ओके एंड आगे? एंड सर जो हमारा इम्पेयरमेंट होता है सर, वो होता है कि हम हमारी जो मशीन है उसके रिलेटेड कोई इंडिकेटर एग्जिस्ट करता है कि उसकी वैल्यू डाउन होनी चाहिए। ओके
तो हम वहाँ पे हम इम्पेयरमेंट करते हैं, और नॉर्मली उसकी फेयर वैल्यू पर पहुंचाना, ओके उसको हम रिवैल्यूएशन कहते ओके हैं सर। ओके ओके यस, बहुत अच्छा जवाब दिया। क्या नाम क्या है आपका? सर मेरा नाम विकास मंगला है सर। ओके ओके, सो लेट मी थैंक्स टू विकास मंगला जी, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने। अगर हम बात करें एसेट्स की, और सभी लोग ध्यान भी देंगे, ये छोटा सा क्वेश्चन शुरू किया हमने। अगर हम बात करें एसेट की, तो एसेट रिवैल्यू तब होती है, कोई भी एसेट रिवैल्यू तब होती है जब हम उसे शो करेंगे उसकी फेयर वैल्यू पर। आज आपने सुबह फेयर वैल्यू मेजरमेंट भी पढ़ा है 113। लेकिन एसेट इंपेयर तब होती है जब उसके इंपेयरमेंट के कोई इंडिकेटर्स एग्जिस्ट करते हैं कि ये एसेट अपनी वैल्यू को काफी हद तक खो चुकी है। एंड तीसरा, एसेट डेप्रिशिएशन होती है, एसेट पर डेप्रिशिएशन लगता है जब उसका नॉर्मल वियर एंड टीयर होता है। बेसिकली उसके अंदर कोई घिसावट होती है, उसका यूज होता है। अगर एसेट नॉर्मली यूज हो रही है तो वो डेप्रिशिएशन लगता है उस पर, नॉर्मल वियर एंड टीयर पर। अगर एसेट पे इंडिकेटर्स एग्जिस्ट करते हैं तो वो इंपेयर होती है। और अगर इंडिकेटर्स पे अभी हम डिस्कस करेंगे फर्दर, रिवैल्यू एसेट्स तब होती है जब हम उसे फेयर वैल्यू पर शो करते हैं। आपने अगर इंडिया 16 को अगर देखा है, सो एज पर इंडिया 16 अगर हम बात करें, एज पर इंडिया 16 हमने मोस्ट ऑफ द टाइम एसेट को रिवैल्यूएशन भी सीखा होगा वहां पर, और रिवैल्यू किया होगा। एसेट रिवैल्यू अपनी फेयर वैल्यू पर होती है, एनुअली भी हो सकती है। एसेट अगर मटेरियल है तो एनुअली भी हो सकती है, अदरवाइज हम 3 to 4 ईयर्स में एक बार एसेट को रिवैल्यू करते हैं। अगर हम बेसिक ऑब्जेक्ट पे आए इस इंडेक्स के, सो मैं कुछ क्वेश्चंस और बोलता हूं। सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है मेरे दिमाग में जब मैं इस इंडेक्स को पढ़ता हूं। पहला क्वेश्चन आता है, सर इंपेयरमेंट जो टेस्ट करना है कि एसेट को इंपेयर करें या ना करें, क्या ये एवरी ईयर होता है? ये टेस्ट हमें हर बार करना पड़ेगा, हर साल करना पड़ेगा? और क्या सर इंपेयर हर एसेट पे होगा? अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक जीरोक्स मशीन का एग्जांपल लिया था आपके सामने। आई होप यू पीपल आर एबल टू गेट मी प्रॉपरली। प्लीज थोड़ा सा रिस्पॉन्सिव रहिएगा ताकि मुझे पता भी रहे कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। सो एक बार चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में, इफ यू पीपल आर एबल टू गेट मी वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू से। प्लीज एक बार चैट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। राइट, यस, थैंक यू एवरीवन। अगर मैं बात करूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया मेरे माइंड में जीरोक्स मशीन पर। तो ठीक है, हमने इंपेयर कर दिया क्योंकि इस एसेट के अंदर कैपेसिटी थी। क्या चीज की कैपेसिटी थी? इस एसेट के अंदर एक कैपेसिटी थी। ये एसेट हमें जनरेट करके दे रही थी कैश, ये हमें इनकम अर्न करके दे रही थी, जनरेट करके दे रही थी इनकम। मैं पूछता हूं इस जीरोक्स मशीन वाले के यहां पर एक अगर एसी लगा हुआ है, एयर कंडीशनर लगा हुआ है, तो आई थिंक यू पीपल आर गेटिंग मी व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। इन केस ऑफ जीरोक्स मशीन we may be able to follow what computing the same for an air condition in our office, so may not be possible because AC gives air flow, I think not the cash flow. I think you people are getting, AC will be air flow तो होगा उससे, एयर कंडीशन से कूलिंग तो होगी, बट आई थिंक पता नहीं कैश फ्लो होगा या नहीं होगा। क्वेश्चन आता है, ऐसी भी तो बहुत सारी एसेट है हमारी एंटिटी के पास जिनसे डायरेक्टली हम कोई कैश जनरेट नहीं कर रहे। हमने एसी लगाया हुआ है, एक चेयर रखी हुई है अपने लिए, राइट। जीरोक्स मशीन वाले के यहाँ पर जो जीरोक्स मशीन थी उससे वो कैश जनरेट कर रहा था जीरोक्स करके, लेकिन एसी से वो कोई कैश जनरेट नहीं कर रहा था। लेकिन क्वेश्चन आता है, क्या ये एसी पर भी लगेगा सर ये इंपेयरमेंट? तो पहला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ जो हम आज यहाँ पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है, क्या इंपेयरमेंट टेस्ट हर साल होना है? और दूसरा क्वेश्चन इसी में, क्या ये हर एसेट पे लगना है बैलेंस शीट पर? दूसरा कि तीसरा क्वेश्चन हमारा, क्या सर जो ये कैश फ्लोज आप बोल रहे हैं कि एसेट को हम फर्दर यूज करें तो ये एसेट 25,000 कैश जनरेट करके दे सकती है, एक्सपेक्टेड कैश जनरेट करके दे सकती है। तो क्वेश्चन अराइज, हाउ टू एस्टिमेट द फ्यूचर कैश फ्लोज, ये फ्यूचर कैश फ्लोज को हम कैसे एस्टिमेट करेंगे? एंड तीसरा क्वेश्चन, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सर ये एनआरवी कैसे निकलेगी एसेट पर? जैसे कुछ एसेट ऐसी होती हैं जिन पर एनआरवी फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल है। जैसे कि कुछ एसेट्स ऐसी होंगी मार्केट में जो सेल होती नहीं होंगी, जनरल मार्केट में सेल के लिए अवेलेबल ही नहीं होती होंगी। जैसे हमारे पास एक सीमेंट प्लांट है, और सीमेंट प्लांट, जो सीमेंट प्लांट है, हो सकता है जनरली मार्केट में अवेलेबल ही ना हो सेल के लिए।
क्वेश्चन नेक्स्ट कि अगर हम कैश फ्लो को, जो फ्यूचर में कैश फ्लोज हैं, जो फ्यूचर के कैश फ्लोज हैं, अगर हम उन्हें प्रेजेंट वैल्यू पर लेंगे, एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं, तो क्वेश्चन आता है उनकी पीवी निकालने के लिए व्हाट डिस्काउंट फैक्टर वी विल यूज, हम कौन सा डिस्काउंट फैक्टर यूज करेंगे। आई होप यू पीपल आर गेटिंग माई क्वेश्चंस। एंड सर कुछ एसेट्स कॉर्पोरेट एसेट्स होती हैं लाइक गुडविल, कॉर्पोरेट एसेट्स लाइक गुडविल। क्वेश्चन आता है जैसे गुडविल है, कॉर्पोरेट एसेट है, जिसका यही नहीं पता होगा, जो एज अ होल एंटिटी तो कंप्यूट हो सकती है, बट वो पर्टिकुलर किसी एसेट से रिलेटेड हमारी गुडविल नहीं होती। सर गुडविल इंटेंजिबल, गुडविल इंपेयर होगी या नहीं होगी। आई थिंक मेरे 3-4 क्वेश्चंस आपको साफ साफ समझ आए। मैंने 3-4 क्वेश्चंस पुट किए। नंबर वन क्वेश्चंस आप लोगों को समझ आया होगा। पहला क्वेश्चन है हमारा कि ये टेस्ट एवरी ईयर होना है या फिर ये टेस्ट 6 मंथ में होना है। नंबर 2 क्वेश्चन, क्या ये हर एसेट पर इंपेयरमेंट होगा, एवरी एसेट पर। तीसरा क्वेश्चन, हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि जो ये फ्यूचर कैश फ्लोज होंगे हमारे, जितने भी फ्यूचर कैश फ्लोज हैं हमारे, ये एस्टिमेट कैसे होंगे। नंबर 4, अगर हम बात करें कि जो प्रेजेंट वैल्यू लेंगे हम, उसके लिए डिस्काउंट फैक्टर क्या यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा ऐसे केस में, इंपेयरमेंट होगा गुडविल पर भी या नहीं होगा। ओके, सो लेट मी डिस्कस विद यू व्हाट इज इंपेयरमेंट लॉस। सो व्हाट इज इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस का मतलब है, इंपेयरमेंट लॉस को अगर हम डिस्कस करें, मीनिंग ऑफ इंपेयरमेंट लॉस इज द अमाउंट when we which reduce the carrying amount of assets to its recoverable amount. Got it? अगर हम अमाउंट को, कैरिंग अमाउंट को इसकी रिकवरेबल अमाउंट तक पहुंचा रहे हैं, तो दैट्स कॉल्ड इंपेयरमेंट लॉस। कैरिंग अमाउंट जो भी एसेट की शो हो रही है, अगर हम उसे रिकवरेबल, जो अमाउंट हम रिकवर कर सकते हैं, देखिए रिवैल्यूएशन और रिकवरेबल में यही डिफरेंस है। रिकवरेबल अमाउंट जो हमें मार्केट में या तो वैल्यू इन यूज या तो फेयर वैल्यू से पता चलेगा, रिकवरेबल अमाउंट, या फिर पता चलेगा कि वैल्यू इन यूज से। एक बार म्यूट करिए, आई थिंक किसी ने अनम्यूट कर दिया है। नीतीश जी एक बार चेक करिए। म्यूट कर दिया सर। Okay, Nitish ji. If I talk about carrying amount, impairment loss is the amount which reduce the carrying amount of assets to cash generating या और cash generating units to its recoverable amount. हम कैश जनरेटिंग यूनिट को अभी लेटर ऑन पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ रहे हैं कि किसी भी एसेट को, अगर इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है, किसी भी एसेट को उसके आज रिकवरेबल अमाउंट तक पहुंचा देता है, जो ये बीच का डिफरेंस हमारा इम्पेयरमेंट लॉस कहलाता है। बेसिकली इस इंडेक्स का नाम इंडेक्स 36 इंपेयरमेंट ऑफ एसेट है। ये इंडेक्स एप्लीकेबल नहीं होता इन्वेंट्री पर, क्योंकि इस पर कोई और इंडेक्स है हमारे पास। अगर इन्वेंट्री हमारी मार्केट में कम रेट पर सेल होगी या उसका रिकवरेबल अमाउंट कुछ और है, तो इस पर इंडेक्स 2 लगता है, जो कि कोई और इंडेक्स है जिसे हम वहीं पर डिस्कस करेंगे। नंबर 2, अगर हम बात करें हमारी कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स, इंडेक्स 115, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट से जितनी भी हमारी रेवेन्यूज हैं, जितनी भी हमारी एसेट जनरेट होती हैं, जितनी भी हमारी एसेट पैदा हो जाती हैं, किससे पैदा हो जाती हैं, जितनी भी हमारी एसेट निकलती हैं इंडेक्स 115 से, उन सब पर भी ये इंडेक्स एप्लीकेबल नहीं होता, उन सब पर भी ये इंडेक्स एप्लीकेबल नहीं होता। एम्प्लॉय बेनिफिट्स पर भी ये इंडेक्स एप्लीकेबल नहीं होता। अगर वहां पर भी कोई एसेट जनरेट हो जाती है, अगर उधर भी कोई एसेट जनरेट हो जाती है, तो वहां पर भी ये इंडेक्स एप्लीकेबल नहीं होता। एंड अगर हम तीसरा डिस्कस करें, ये इंडेक्स एप्लीकेबल नहीं होता बायोलॉजिकल एसेट्स पर भी, नॉन करंट एसेट्स जो इंडेक्स 105 में डील कर रहे हैं हम, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो 104 में है, एंड साथ में फाइनेंशियल एसेट्स कवर्ड अंडर इंडेक्स 109 में, इन सब पर ये इंडेक्स एप्लीकेबल नहीं होता। ये इंडेक्स सर एप्लीकेबल कहाँ होता है, ये इंडेक्स एप्लीकेबिलिटी कहाँ ला रहा है अपनी। इस इंडेक्स की बात करें, मैं दोबारा बोल रहा हूं, ये इंडेक्स अल्टीमेटली 2 जगहों पर एप्लीकेबल हो रहा है, एक तो पीपीई पर
जो करक्स आया, और दूसरा ये इंड एस एप्लीकेबल हो रहा है इंटेंजिबल एसेट्स पर। इंटेंजिबल एसेट्स हमारी 38 में कवर होती हैं, पीपी 16 में कवर होती हैं। ये इंडेस हमारा एप्लीकेबल नहीं होता जिन पर कंसर्न रिस्पेक्टिव कोई इंडेस लगते हैं। लाइक जैसे कि मैं फिर बोलता हूं, हमारे इन्वेंट्री पर एक इंडेस है गया, हमारी इन्वेंट्री पर भी इंडेस है। आई थिंक मैं मेरी वीडियोस शायद विजिबल नहीं है, प्रॉपर विजिबल है, ओके। ये इंडेस इन्वेंट्री पर एप्लीकेबल नहीं होता, ये इंडेस डेफर्ड टैक्स एसेट पर एप्लीकेबल नहीं होता, ये उन एसेट पर एप्लीकेबल नहीं होता जो 115 से जनरेट हुई हैं, ये उन एसेट पर जनरेट नहीं होता जो एसेट्स हेल्ड अंडर सेल हैं 105 में, ये उन एसेट पर नहीं लगता जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट पर है। बेसिकली ये इंडेस दो एसेट पर लगता है, एक तो पीपीई पर और एक इंटेंजिबल पीपीई पर, जो इंडेस 38 में डील होती है, राइट। अगर हम बात करें, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारे माइंड में कि सर जो हमारा रिपोर्टिंग पीरियड पे अगर हम बात करें इस इंडेस के बारे में, रिपोर्टिंग पीरियड, रिपोर्टिंग डेट पर क्वेश्चन आता है कि ये रिपोर्टिंग डेट पर ही हमें टेस्ट करना है कि इंडिकेटर एग्जिस्ट करते नहीं करते, या कब करना है। देखिए आप किसी भी डेट पर ये इंडिकेटर्स चेक कर सकते हैं, किसी भी डेट पर ये इंडिकेटर्स आप चेक कर सकते हैं कि बट वो डेट कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अगर पिछले साल आपने फरवरी में चेक किए इंडिकेटर्स एसेट्स को, रिकवरेबल अमाउंट को देखने के लिए, तो सेम आप इस साल भी फरवरी में देखेंगे। अदरवाइज आप रिपोर्टिंग डेट पर चेक कर सकते हैं इंडिकेटर एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं। इंडिकेटर दो तरह के होते हैं इंपेयरमेंट करने के लिए, एक एक्सटर्नल इंडिकेटर और एक इंटरनल इंडिकेटर्स। जो एक्सटर्नल इंडिकेटर होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। एक्सटर्नल इंडिकेटर्स पर अगर हम बात करें तो एक्सटर्नल इंडिकेटर हमारे दो होते हैं। एक्सटर्नल इंडिकेटर हमारे 3-4 हैं। नंबर 1, एक्सटर्नल इंडिकेशन में सबसे पहला पॉइंट है जब हमारी मार्केट वैल्यू डिक्लाइन हो रही है किसी एसेट्स की। जो जीरोक्स मशीन थी हमारी, अगर उसकी मार्केट में वैल्यू डिक्लाइन हो चुकी है, सिग्निफिकेंटली डिक्लाइन हो चुकी है, वैल्यू कम हो चुकी है, तो ऑटोमेटिकली ये एक इंडिकेटर है कि आप इंपेयरमेंट करिए। दूसरा, अगर एडवर्स इफेक्ट है, मार्केट में एडवर्स इफेक्ट है, सिग्निफिकेंटली एडवर्स इफेक्ट है हमारी एसेट्स का, तो भी इंडिकेटर एग्जिस्ट करता है, हमें उसे मार्केट वैल्यू पे, हमें उसे रिकवरेबल अमाउंट पे शो करना होगा। एंड तीसरा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो वो इंक्रीज होता जा रहा है, मार्केट में जो इंटरेस्ट का रेट है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ऑटोमेटिकली हमारी एसेट्स की वैल्यू गिरना शुरू हो जाएगी। कोई बता सकता है मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से एसेट की वैल्यू कैसे गिरना शुरू हो जाएगी? कोई भी आप में से, कोई भी? एसेट की वैल्यू कैसे गिरना शुरू हो जाएगी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से? एसेट की वैल्यू कैसे हो जाएगी? कोई भी आप में से बता सकता हो, बताइए एक बार। नो वन, नोबडी? एसेट की वैल्यू मैं बता देता हूं, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे ही बढ़ेगा, मार्केट में इंटरेस्ट का रेट जैसे ही हाई होता है, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी है और मार्केट में आप इंटरेस्ट 100 रुपए उधार लेते हैं, मार्केट से आप 100 रुपए लोन लेते हैं और मार्केट में इंटरेस्ट का रेट अगर 15% है, या उधार देते हैं या लेते हैं, तो आप 15 रुपए कमा सकते हैं उधार देते हैं। तो मार्केट में इंटरेस्ट का रेट इतना बढ़ गया है, लेकिन आपकी असेट जनरेट कर पा रही है 10 रुपए केवल बिजनेस में, लेकिन मार्केट में आपको इंटरेस्ट ज्यादा मिल रहा है। अगर आप मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो वो बढ़ गया है। मार्केट में अगर आप 100 रुपए लगाएं तो आप 15 रुपए कमा सकते थे, लेकिन यहां पर आपसे 100 रुपए लगाएं तो आप 10 रुपए कमा पा रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली बात है, एसेट की वैल्यू, कैश जनरेटिंग कैपेसिटी एसेट की कम हो चुकी है। फोर्थ पॉइंट, अगर हम बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ एंटिटी अगर कम है नेट बुक वैल्यू ऑफ एसेट से, तो ऐसे केस में भी एक्सटर्नल इंडिकेटर हमारा एग्जिस्ट करता है। तो हमने दो तरह के इंडिकेटर्स पे बात करी, एक एक्सटर्नल इंडिकेटर, सेकंड वन इज इंटरनल इंडिकेटर। एक्सटर्नल में नंबर 1 मैंने आपको बताया मार्केट में डिक्लाइन हो रही है, मार्केट वैल्यू डिक्लाइन हो रही है। नंबर 2 मैंने आपको बताया एडवर्स इफेक्ट आ रहा है मार्केट में। एडवर्स इफेक्ट जैसे टेक्नोलॉजी की वजह से भी हो सकता है, वो एनवायरमेंट की वजह से भी हो सकता है, कोविड-19 की वजह से भी हो सकता है। एडवर्स इफेक्ट आ गया एंटिटी पर मार्केट में। तीसरा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट है,
वो बहुत हाई हो गया है। अभी मैंने बताया मार्केट में 100 रुपए लगाएं तो 15 कमा सकते हैं, लेकिन एसेट में 100 रुपए लगा रहे हैं तो कम कमा पा रहे हैं, कम अर्निंग है हमारी। एंड फोर्थ, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है सेम है, मार्केट कैपिटलाइजेशन एंटिटी का कम हो गया है, किससे? बुक वैल्यू से। असेट जो है उनकी बुक वैल्यू से मार्केट में कैपिटलाइजेशन कम है, वही इंटरेस्ट की तरह हो गया। ये सब एक्सटर्नल इंडिकेटर है। सर इंटरनल इंडिकेटर क्या है? अगर मैं इंटरनल इंडिकेटर की बात करूं एसेट को देखने के लिए, तो इंटरनल इंडिकेटर में है जैसे कि फिजिकली डैमेज हो गई एसेट। इफ आई टॉक फिजिकली, मेरा फोन था, मेरे हाथ से छूटा और फिजिकली वो डैमेज हो गया, डैमेज होने से उसकी मार्केट में वैल्यू कम हो गई। तो फिजिकली डैमेज इज वन ऑफ द एग्जांपल कि मार्केट में वैल्यू कम होने का, रिकवरेबल अमाउंट उसकी एक्सट्रीमली गिरने का। रीस्ट्रक्चरिंग, एंटिटी ने रीस्ट्रक्चर कर दिया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर दिया, एंटिटी लिक्विडेशन वाली फॉर्म में आने की कोशिश कर रही है, रीस्ट्रक्चर कर रही है अपने आप को। तो ये इंटरनल फैक्टर है, ना कि एक्सटर्नल फैक्टर है। एनवायरमेंटल कोई फैक्टर नहीं है, ये इंटरनल फैक्टर है कि एंटिटी अपने आप को रीस्ट्रक्चर कर रही है, जिसकी वजह से उसके एसेट की मार्केट वैल्यू कम भी हो सकती है। एंड तीसरा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है जो एसेट की, वो नियर फ्यूचर में या अभी फिलहाल वो कम हो चुकी है। जो भी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस एसेट की कैपेसिटी, एसेट की इनकम जनरेट करने की कैपेसिटी। तो अगर ये सब फैक्टर होते हैं हमारे, अगर इंटरनल फैक्टर्स में मैंने 3 फैक्टर्स बताए आपको, फिजिकली डैमेज, एंड दूसरा फैक्टर था हमारा फिजिकली डैमेज के बाद रीस्ट्रक्चरिंग, एंड तीसरा फैक्टर था हमारा इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। अगर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस डाउन हो रही है तो इस केस में भी एसेट को इंपेयर करना होगा, राइट। तो 2 इंडिकेटर्स आपने चेक करने हैं एसेट्स को इंपेयर करने के लिए। पहला इंडिकेटर क्या था हमारा? एक्सटर्नल इंडिकेटर्स। दूसरे इंडिकेटर्स हमारे इंटरनल इंडिकेटर्स। एक्सटर्नल इंडिकेटर जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, विच आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी, एंड इंटरनल इंडिकेटर्स विच आर समवेयर इन कंट्रोल ऑफ द एंटिटी, समवेयर, क्योंकि फिजिकल डैमेज हमारे कंट्रोल में नहीं था, हो गया जो हो गया, लेकिन फिर भी हमारा इंटरनल फैक्टर को ये शो करता है, रिफ्लेक्ट करता है। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एसेट को इंपेयरमेंट के लिए हमें एनुअली रिव्यू करना है इंडिकेटर्स को, या हम किसी फिक्स डेट पे कर सकते हैं? तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया एनुअली हम रिव्यू कर सकते हैं एसेट को, राइट। अगर हम किसी और डेट पर भी करना चाहें एनुअली भी करेंगे, बट कंसिस्टेंटली करेंगे। अगर हमने लास्ट ईयर फरवरी में किया था एसेट को इंपेयर, तो फरवरी में रिव्यू किया था इंडिकेटर्स, तो इस साल भी हम फरवरी में चेक करेंगे। अदरवाइज आप रिपोर्टिंग डेट पर भी कर सकते हैं। कभी कभी कुछ एसेट्स के इंडिकेटर्स, आई थिंक कोई डिस्टरबेंस है लास्ट में, नीतीश जी प्लीज चेक इट, कोई डिस्टरबेंस हो रही है नीतीश जी? नीतीश सर प्लीज चेक करेंगे आप एक बार? आप अपना अनम्यूट कर लीजिएगा नीरज जी। ओके, मैं अपने आप को अनम्यूट करूं एक बार? हाँ, मैं एक बार म्यूट कर रहा हूँ सबको। ओके सर, ओके। राइट सर, राइट ओके, सर, अब डिस्टरबेंस नहीं होगी। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। तो 2 तरह के फैक्टर्स हैं हमारे पास, इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स के बाद अगर हम आगे चले तो एसेट को रिव्यू करना है हमें। क्वेश्चन आता है साहब इस एसेट को जो रिव्यू करना है हमें, वो ईयरली करना है या वो हम 3-4 साल में कर सकते हैं? कब करना होता है हमें? मैंने बताया एसेट को रिव्यू करना है अपने एनुअल बेसिस पर, और इंडिकेटर चाहे एग्जिस्ट करते हैं आपके नहीं करते हैं, आपने रिव्यू तो करना ही चाहिए उस एसेट को। कब सर, कब करना चाहिए? कुछ एसेट ऐसी हैं उनमें इंडिकेटर एग्जिस्ट करें या ना करें, आपने उन्हें रिव्यू करना है एनुअल बेसिस पर। पहली एसेट है जिन्हें हमें एनुअल बेसिस पर रिव्यू करना है, पहली एसेट हमारी है जिन्हें हमें एनुअल बेसिस पर रिव्यू करना है। क्वेश्चन है कि कुछ एसेट हमें एनुअल बेसिस पर ही रिव्यू करनी है, चाहे इंडिकेटर एग्जिस्ट करते हैं, एनुअल बेसिस पर हमें रिव्यू करना है उन्हें, चाहे हमारे एक्सटर्नल और इंडिकेटर फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। नंबर 1, इंटेंजिबल एसेट्स, वो इंटेंजिबल एसेट्स जिनके इनडेफिनेट पीरियड है, जिनका पीरियड इनडेफिनेट पीरियड है, वो इंटेंजिबल एसेट हमें, मतलब जिनकी अनलिमिटेड लाइफ है, जिनका कोई यूजफुल लाइफ का क्वेश्चन नहीं है कि 10 साल है 12 साल है, उनका अमोर्टाइजेशन मेथड हमें नहीं पता कितने साल में हम कर रहे हैं, जो इनडेफिनेट है,
तो उनको आप एवरी ईयर रिव्यू करें। दूसरा, इंटेंजिबल एसेट जो अभी तक यूज ही नहीं हुई है, जितनी भी अभी तक यूज नहीं हुई है उन्हें भी आपने एनुअल रिव्यू करना चाहिए। एंड तीसरा, जो गुडविल है आपकी, जो आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन में गुडविल ली होगी, राइट, बिजनेस कॉम्बिनेशन में जो भी गुडविल आपने ली है वो भी आपने एनुअली रिव्यू करनी है। मींस ये 3 एसेट आपने एनुअल रिव्यू करने हैं, चाहे इंडिकेटर एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपने एक बार इन्हें रिव्यू करना है, इनकी पोजीशन क्या है, इनकी पोजीशन को आपने एक बार चेक करना होगा, एनुअली चेक करना होगा। अगर आप इनकी पोजीशन एनुअली देख रहे हैं, ऑटोमेटिकली एनुअली कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा। इंडिकेटर बाद की बात है, पहले इनमें आपने एनुअली रिव्यू करके इनको देखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इन एसेट को देखने के बाद कि सर इंडिकेटर एग्जिस्ट करते हैं इंपेयरमेंट के, तो एंटिटी, अच्छा क्वेश्चन बताइए, आपसे पूछता हूं मैं ये क्वेश्चन, बताइए कि इंपेयरमेंट के इंडिकेटर एग्जिस्ट करते हैं, इंडिकेटर एग्जिस्ट कर रहे हैं, कोई भी बताइएगा। लेकिन इंपेयरमेंट के इंडिकेटर तो एग्जिस्ट है, मार्केट में वैल्यू कम हो रही है, मार्केट में ये हो रहा है वो हो रहा है, वो सब एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन हमारी कैरिंग अमाउंट 25,000 थी, 25,000, और रिकवरेबल अमाउंट भी हमारी 25,000 आ रही है। क्या हमें अभी भी इंपेयरमेंट को शो करना होगा? इंडिकेटर एग्जिस्ट करते हैं, कोई भी बताइए एक बार, क्या हमें इंपेयरमेंट को अभी भी कैलकुलेट करना होगा, इंपेयरमेंट लॉस शो करना होगा, कैलकुलेट करना होगा? कोई भी आप में से, ये एक अच्छा क्वेश्चन आता है। इंपेयरमेंट के इंडिकेटर तो एग्जिस्ट कर रहे हैं, इंपेयरमेंट करिए, लेकिन जो रिकवरेबल अमाउंट है, मींस हमारा इंपेयरमेंट लॉस निल आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो हमें अभी भी शो करना होगा या नहीं करना होगा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। यस, आपको कैलकुलेट करना होगा, आपने कैलकुलेशंस करनी होंगी इंपेयरमेंट की, ऐसा हमें इंड एस 36 बोलता है कि हमें कैलकुलेशंस करनी होंगी, कैलकुलेट करके दिखाना होगा, हमें डिस्क्लोज करना होगा नोट्स टू अकाउंट में कि इंपेयरमेंट के हमारे जो फैक्टर्स हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, राइट। कैलकुलेशन आपने शो करनी होगी। उसके बाद आपका इंपेयरमेंट लॉस निल आ रहा है तो कोई नीड नहीं है बैलेंस शीट में आने की, इंपेयरमेंट लॉस निल से आ जाएगा आपका, राइट। इसके बाद आता है इंपेयरमेंट लॉस है क्या, इंपेयरमेंट लॉस कैसे निकलेगा, इंपेयरमेंट लॉस कितना आता है हमारा, इंपेयरमेंट लॉस कितना होगा हमारा इंपेयरमेंट लॉस जो होगा, हमारा जो इंपेयरमेंट लॉस होगा वो कितना होगा? सर इंपेयरमेंट लॉस जो भी हमारी कैरिंग अमाउंट होगी उसमें से अगर हम रिकवरेबल अमाउंट लेस कर दें तो हमारा इंपेयरमेंट लॉस बचता है, राइट। क्वेश्चन है सर ये कैरिंग अमाउंट कैसे आती है? कैरिंग अमाउंट जो हमारी कॉस्ट होती है, हमारी कॉस्ट में अगर आप प्लस माइनस कर दें, रिवैल्यूएशन अगर आपने एसेट को करा है, रिवैल्यूएशन रिजर्व या लॉस को, एंड प्लस माइनस कर दें आप अभी तक के डेप्रिसिएशन को, तो ये हमारी कैरिंग अमाउंट आ जाती है। क्वेश्चन आता है साहब रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है? रिकवरेबल अमाउंट हमारी या तो फेयर वैल्यू होती है जो आपने आज सुबह पढ़ा था 113 में इंड एस 113, या फिर हमारी ये OR वैल्यू इन यूज होती है। सर वैल्यू इन यूज कब होती है? विच एवर इज लोअर हायर क्या होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। फेयर वैल्यू अगर हम निकाल पा रहे हैं, फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर पा रहे हैं बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट से, या तो बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट हुआ पड़ा है हमारा कोई भी सेल का, या हमारी कोई रीसेंट ट्रांजैक्शन है उसकी वैल्यू से हमें पता चलेगा, मींस 113 इस पे गाइड करता है हमें फेयर वैल्यू हम पता लगा पा रहे हैं नहीं। अगर आप किसी भी तरीके से फेयर वैल्यू पता नहीं लगा पा रहे हैं तो आपने एस्टिमेट करना होगा फ्यूचर कैश फ्लोज, एस्टिमेटेड कैश फ्लोज। वैल्यू इन यूज का मतलब होता है इफ वी यूज दिस एसेट फर्दर रिमेनिंग ईयर्स, so how much amount we can get from the using of this assets in near future, हम इन नियर फ्यूचर में कितना कैश जनरेट कर सकते हैं इस एसेट से, दैट्स कॉल्ड वैल्यू इन यूज। सो हम इसकी पीवी ले लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू, जब हम इसको यूज करते हैं तो इसकी पीवी को ले लेते हैं। क्वेश्चन आता है पीवी के लिए साहब डिस्काउंट फैक्टर कौन सा होगा? पहली बात तो पीवी को लेने से पहले आता है एस्टिमेटेड जो हमारे कैश फ्लोज हैं, जो एक्सपेक्टेड नेट कैश फ्लोज हैं, वो किस बेस पर लेने हैं हमें, वो कितने लेने हैं, वो किस अजम्पशन के आधार पर लेने हैं? क्वेश्चन है वो रीजनेबल और सपोर्टिव, जितने भी सपोर्टेबल आपके पास अजम्पशन है, जिनके आप एविडेंस दे सकते हैं, जिनके आप प्रूफ दे सकते हैं, मैनेजमेंट बेस्ट एस्टिमेट कर सकता है इन अजम्पशंस के आधार पर अपने फ्यूचर कैश फ्लोज को। और ज्यादा वेट किसको देगा? मैनेजमेंट भी, मैनेजमेंट को ज्यादा वेट देना चाहिए
सपोर्टेबल एविडेंस, सपोर्टेबल अजम्पशंस लेने के लिए एक्सटर्नल एविडेंस को अगर आपने इंटरनल एविडेंस के बेस पर निकाला है फ्यूचर कैश फ्लो, तो वो बहुत ज्यादा जस्टिफिएबल नहीं होगा। याद रखिएगा, एक्सटर्नल एविडेंस हो सकते हैं। इस पर्पस के लिए ज्यादा वेट मैनेजमेंट को एक्सटर्नल एविडेंस पर देना है, जो कि लेटेस्ट बजट से भी काफी इन्फ्लेशन रेट्स हमें मिलते हैं। जो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो है वो मैक्सिमम ऐसा बताया है इंडेस ने। इंडेस ऐसा नहीं बोला, इंडेस बोलता है कि नॉर्मली आप कितने भी साल का ले सकते हैं, बट इंडेस के अंदर मेंशन है साथ में एक चीज कि जो आपने फ्यूचर कैश फ्लोज का बेस लेना है, मैनेजमेंट जो लेगा वो मैक्सिमम 5 साल तक का ले सकता है। लेकिन आपको अपने कोर्सेज में, वैल्यूएशन के कोर्सेज में या सीए फाइनल के कोर्सेज में या कहीं पर भी ऐसा लगता है कि एंटिटी 6 साल का लेना चाहती है, 7 साल का लेना चाहती है, तो वो जस्टिफाई कर दे कि वो ऐसा क्यों कर रही है, मैनेजमेंट डिसीजन ले इसका कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, 6 साल के बेस पर लेना चाहते हैं, 7 अगर ज्यादा एविडेंस मोर कंपैटिबल है उनको 7 साल लेना, 8 साल लेना, तो वो ले सकते हैं। अदरवाइज 5 इयर्स इंडेक्स बताता है कि 5 इयर्स पे इसको ले लेना चाहिए। सर डिस्काउंट रेट कौन सा लेना है? डिस्काउंट रेट हम सीखते हैं, एक तो प्री टैक्स रेट लेना है, डिस्काउंट फैक्टर जो लेना है वो प्री टैक्स रेट लेना है अपना, राइट। जो डिस्काउंट रेट लेना है हमें वो प्री टैक्स रेट लेना है। और क्वेश्चन है कि जितनी भी स्पेसिफिक असेट हैं उनके अगर मार्केट रेट अवेलेबल नहीं हो पा रहे मार्केट से, तो ऐसे केस में हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी ले सकते हैं, जो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट टेक्निक्स में सीखते हैं। इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट्स ले सकते हैं, मार्केट से नॉर्मल इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं, जो मार्केट के रेट चल रहे हैं वो डिस्काउंट फैक्टर्स हम ले सकते हैं अगर हम कंप्यूट नहीं कर पा रहे। अदरवाइज हमें कंप्यूट करना है करंट मार्केट असेसमेंट करके, मार्केट को असेस करके हमें डिस्काउंट फैक्टर देखना है। और मार्केट को असेस करने का तरीका होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी या रिस्क स्पेसिफिक होता है उस एसेट से रिलेटेड। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब आप पीवी निकाल लेते हैं किसी भी एसेट की एक्सपेक्टेड कैश फ्लो से, तो एक पॉइंट आता है, अगर ये एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज हैं जो, अगर ये फॉरेन करेंसी में है, हमें अगर फॉरेन करेंसी में एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, तो हमें सबसे पहले फॉरेन करेंसी में ही डिस्काउंट फैक्टर, डिस्काउंट रेट को भी फॉरेन करेंसी का वाला ही यूज करना होगा। और हमें सबसे पहले कैश फ्लो भी फॉरेन करेंसी में निकालने होंगे, बाद में स्पॉट रेट से इंडियन करेंसी में हम इसे चेंज करेंगे, राइट, अगर ये फॉरेन करेंसी में है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो के लिए हम वेटेड एवरेज लेना चाहें, अगर कोई और तरीका नहीं लगता है, तो एक प्रोबेबिलिटी है कि हम वेटेड एवरेज भी ले सकते हैं। अगर एक्सपेक्टेड कैश फ्लो इस ए नाम के सोर्सेज से भी आ सकता है, बी से भी आ सकता है, ऑल्टरनेट है ऑप्शन एंटिटी के पास। कैश फ्लो लाने के लिए जीरोक्स मशीन को वो बेचती है तो क्या होगा, जीरोक्स मशीन को रेंट पर देती है तो क्या होगा, जीरोक्स मशीन से वो यूज करती है तो क्या होगा। मींस अगर मोर देन 1 प्रोबेबिलिटी है कैश जनरेट करने की, तो इन दैट केस वी विल फॉलो द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, राइट। अगर हम इंपेयरमेंट लॉस को रिकॉग्नाइज करते हैं, वो क्वेश्चन आता है रिकॉग्निशन ऑफ द इंपेयरमेंट लॉस। सर इनका रिकॉग्निशन कैसे होगा? रिकॉग्निशन करने के 2 तरीके हैं। अगर हमने पहले रिवैल्यूएशन मॉडल लगाया है, रिवैल्यूट किया हुआ सेट का, जो जितने का हमारे पास आरआर बना हुआ है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है, उतने तक का इंपेयरमेंट हम अपना, उतने तक का इंपेयरमेंट हम, सॉरी एक मिनट, आई थिंक एक सेकेंड रुकिए, स्क्रीन शायद दूसरी शो हो गई है। नीतीश जी स्क्रीन सही शो हो रही है? नहीं सर, स्क्रीन शो सही नहीं हो रही। ओके ओके ओके, मैं देखता हूँ सर। अब ठीक है सर? नाउ इट इज गुड। एक सेकेंड रुकिए सर। सर प्लीज एक बार बताइए। अब ठीक है सर। ओके, अगर हम रिकॉग्निशन की बात करें, रिकॉग्निशन कैसे करना है इंपेयरमेंट लॉस का, तो जितने भी हमारा इंपेयरमेंट लॉस हुआ है प्राइमा फेसिली, मैंने आपको बताया था, मैंने आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट प्राइमा फेसिली इट विल ट्रांसफर टू द P&L, स्टेटमेंट इन P&L में चला जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास रिवैल्यूएशन रिजर्व है, तो टू दैट एक्सटेंट वी हैव रिवैल्यूएशन रिजर्व अवेलेबल विद अस, सो वी विल ट्रांसफर, वी विल सेट ऑफ द इंपेयरमेंट लॉस टू दैट एक्सटेंट फ्रॉम द रिवैल्यूएशन रिजर्व। अच्छा, आपको ये भी पता है इंडिया 16 के अकॉर्डिंगली रिवैल्यूएशन रिजर्व के भी 2 ट्रीटमेंट है, रिवैल्यूएशन रिजर्व के भी 2 ट्रीटमेंट होते हैं। एक
रिवैल्यूएशन रिजर्व हम एज इट इज शो कर सकते हैं बैलेंस शीट में जब तक वो एसेट डिस्पोज ऑफ ना हो जाए। आपको पता होगा जितना भी आपने रिवैल्यूएशन किया है अपनी एसेट का, उसे हम एज इट इज भी शो कर सकते हैं जब तक वो एसेट हमारी फाइनली डिस्पोज्ड ऑफ ना हो जाए। एंड दूसरा रिवैल्यूएशन रिजर्व का दूसरा ट्रीटमेंट था कि हम रिवैल्यूएशन रिजर्व पर जितना एडिशनल डेप्रिसिएशन है हमारा, रिवॉल्यूशन की वजह से जितना भी डेप्रिसिएशन लग रहा है उतने तक का रिवॉल्यूशन रिजर्व को रेवेन्यू रिजर्व में ट्रांसफर कर दे। पता है आप लोगों को, थोड़ा सा आइडिया है इसके बारे में। इंडिया 16 के अकॉर्डिंगली वी हैव टू ट्रीटमेंट्स ऑफ रिवॉल्यूशन, वी हैव टू प्रिंसिपल्स। आइडिया है आप लोगों को इसका? नोबडी? कोई भी अगर बताएं, आइडिया है आपको? मैं चैट बॉक्स में अब देख पा रहा हूं। ओके ओके ओके। रिवॉल्यूशन रिजर्व के लिए दो प्रिंसिपल्स होते हैं हमारे पास। प्रिंसिपल नंबर 1 कि रिवॉल्यूशन रिजर्व को हम एज इट इज रखे रहने दें अपने पास, और जब एसेट डिस्पोज ऑफ होगी, रिटायर्ड होगी, तब हम एसेट के रिवॉल्यूशन रिजर्व को रेवेन्यू रिजर्व में ट्रांसफर कर दें। एंड दूसरा हमारे पास एक और इसका प्रिंसिपल है रिवॉल्यूशन रिजर्व को शो करने का। दूसरा प्रिंसिपल है हमारे पास रिवॉल्यूशन रिजर्व को शो करने का कि हम जितने तक का डेप्रिसिएशन हमारा रिवॉल्यूशन रिजर्व की वजह से बढ़ गया, एडिशनल डेप्रिसिएशन, उतने तक का रिवॉल्यूशन रिजर्व हम रेवेन्यू रिजर्व में ट्रांसफर करें, ओसीआई में भेजेंगे उसे हम। राइट? तो क्वेश्चन है अब हमारा, अगर एंटिटी के पास रिवॉल्यूशन रिजर्व है, पड़ा हुआ है, एंटिटी के पास रिवॉल्यूशन रिजर्व है, अगर एंटिटी के पास रिवॉल्यूशन रिजर्व है तो बहुत ध्यान से, जितने तक का रिवॉल्यूशन रिजर्व है और एंटिटी प्रिंसिपल फॉलो कर रही है इंटैक्ट रिवॉल्यूशन रिजर्व को एज इट इज रखने वाला प्रिंसिपल, एंटिटी रिवॉल्यूशन रिजर्व को एंड तक रखेगी जब तक एसेट डिस्पोज ऑफ नहीं हो जाती। तो इस वाले प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है, तो आप जितना आपके पास रिवॉल्यूशन रिजर्व है पूरा का पूरा यूज कर लीजिए इंपेयरमेंट लॉस के लिए। अगर फिर भी आपके पास पैसा कम पड़ता है, रिवॉल्यूशन रिजर्व में कमी होती है, तो बाकी पीएनएल से चला जाएगा, पीएनएल में चला जाएगा। और अगर सरप्लस होता है तो बाकी रिवॉल्यूशन रिजर्व में आपके पास रहेगा, उस एसेट से रिलेटेड है रिवॉल्यूशन रिजर्व, तो वो ओसीआई में चला जाएगा, वो रिवॉल्यूशन रिजर्व आपका ट्रांसफर हो जाएगा। रिवॉल्यूशन रिजर्व सरप्लस है आपके पास। तो क्वेश्चन है, अगर एंटिटी फॉलो कर रही है कौन सा वाला मेथड, रिवॉल्यूशन रिजर्व में से एडिशनल डेप्रिसिएशन वाले प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है, सो इन दैट केस जो हमारी रिवाइज कैरिंग अमाउंट है वो कैसे शो होगी? रिवाइज कैरिंग अमाउंट को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, उस एसेट में से जितने तक का रिवॉल्यूशन रिजर्व हम इस्तेमाल कर सकते थे एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए। राइट? मैंने दोबारा से बोला, दो मेथड मेरे पास है। मेरे पास दो मेथड है। राइट? रिवॉल्यूशन रिजर्व एज इट इज रखने का, मैं एंड में इसे ट्रांसफर करूंगा टू रेवेन्यू रिजर्व में जब एसेट डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, एंड या फिर मैं रिवॉल्यूशन रिजर्व में से उतना डेप्रिसिएशन उठा लूंगा जो रिवॉल्यूशन रिजर्व से रिलेट करता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन उसे बोलते हैं एज पर इंडिया 16। अगर मैं ये वाली अप्रोच फॉलो कर रहा हूं तो मैंने आपको बताया ऐसे केस में मैं क्या करूंगा, जितना भी मेरा रिवॉल्यूशन रिजर्व है मैं उसको यूज कर लूंगा इंपेयरमेंट के लिए। अगर फिर भी मेरे पास कम होता है, रिवॉल्यूशन रिजर्व कम है, लेस देन इंपेयरमेंट लॉस है, सो इन दैट केस बैलेंस अमाउंट आई विल ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। राइट? एंड अगर मैं ये वाली अप्रोच फॉलो कर रहा हूं तो इन दैट केस सपोज करिए मैंने एक एसेट खरीदी थी 2,50,000 की और इसकी लाइफ थी 10 ईयर्स। राइट? तो इस एसेट पर मेरा डेप्रिसिएशन लगा होगा 25,000। 2 साल बाद इस एसेट की वैल्यू होगी 2 लाख। मैंने इसे रिवैल्यू कर दिया, अभी मैंने इंपेयरमेंट नहीं किया है, प्लीज ध्यान से समझिएगा। मैंने इसे रिवैल्यू कर दिया मैंने इसे, और रिवैल्यूशन होने के बाद ये 2,60,000 पर पहुंच गई अगेन। राइट? तो 60,000 का मेरे पास रिवॉल्यूशन रिजर्व आ गया। अगर 60,000 का रिवॉल्यूशन रिजर्व मेरे पास आ गया तो क्वेश्चन आता है, एसेट की रिमेनिंग लाइफ 8 साल रह गई है, इसे ना रिवैल्यू 40,000 पे करते हैं, थोड़ा आसान रहेगा, 40,000 पे, एंड 40,000 का रिवॉल्यूशन रिजर्व हो गया। मेरे पास रिमेनिंग लाइफ एसेट की 8 साल रही है, सोच लीजिए वो बिल्कुल सेम है रिवॉल्यूशन के बाद भी।
तो मेरे पास अब अगले साल डेप्रिसिएशन लग गया 30,000 और असेट की कैरिंग अमाउंट आ गई 2,10,000। इस साल इंडिकेटर एग्जिस्ट थे इंपेयरमेंट के, और इंपेयरमेंट करने के बाद पता चला अगर हम इसे इंपेयर करते हैं तो 210 वाली एसेट हमारी पहुंचती है 180 पर, 170 पर, राइट। अगर 1,70,000 पर हम इसे एसेट को ले जाते हैं तो 40,000 का हमारा इंपेयरमेंट लॉस आ गया। यहां तक सभी को क्लियर? मैंने क्या क्वेश्चन बनाया है? 2,50,000 की हमारी एसेट थी, 10 इयर्स इसकी लाइफ थी, 25,000 एवरी ईयर डेप्रिसिएशन था, 2 इयर्स हमारे हो चुके हैं, पास आउट हो चुके हैं, 2 लाख कैरिंग अमाउंट आ रही है सेट की आफ्टर 2 इयर्स। हमने इसे रिवैल्यूएशन किया तो 240 पर ये रिवैल्यू हुई, 40,000 का आरआर आ गया रिवैल्यूएशन रिजर्व, एंड अगले साल हमने डेप्रिसिएशन लगाया 30,000, एंड उसके बाद हमारी असेट को हमने इंपेयरमेंट लॉस में ट्रांसफर कर दिया। मतलब रिकवरेबल अमाउंट इसकी 170 है और इंपेयरमेंट लॉस आ गया हमारा 40,000। माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, मुझे आप बताएंगे इस साल अगर हम एडिशनल डेप्रिसिएशन वाली टेक्निक फॉलो कर रहे हैं तो कोई भी अमाउंट चैट बॉक्स में लिख के बताइए हमारा इस साल एडिशनल डेप्रिसिएशन जो आरआर से एडजस्ट होगा वो कितना है, जो रिवॉल्यूशन रिजर्व से एडजस्ट होना चाहिए, 40,000 के रिवॉल्यूशन रिजर्व से एडजस्ट होना चाहिए, वो कितना है हमारा। कोई भी आप में से बताइए। अगर ये एसेट्स रिवैल्यू ना होती, रिवैल्यू होने के बाद 40,000 इस पर बढ़ा, राइट, 5,000, राइट, 5,000 की हमारी अमाउंट ऐसी है इस पर जिसको अगर हम रिवैल्यूशन रिजर्व हमने किया, रिवैल्यू किया इस एसेट को हमने, जिसकी वजह से 5,000 रुपए ऐसे हैं जो रिवैल्यूशन रिजर्व, एक तरीके से रिवैल्यूशन रिजर्व का कैरिंग अमाउंट कितना है, 40,000 माइनस 5,000, 35,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? रिवॉल्यूशन रिजर्व का कैरिंग अमाउंट हमारे पास कितना है, रिवॉल्यूशन रिजर्व हमारा इस्तेमाल हो जाएगा 5,000 का। आइए जल्दी से डिस्कस करते हैं। अगर हम ये वाली टेक्निक फॉलो कर रहे हैं एज इट इज रिवॉल्यूशन रिजर्व को रखने वाली टेक्निक को, तो हमारी एंट्री होगी इंपेयरमेंट लॉस की, एंट्री होगी रिवॉल्यूशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 टू इंपेयरमेंट लॉस। सबको क्लियर हुई ये एंट्री? ये एंट्री हो जाएगी। और अगर हम टेक्निक फॉलो कर रहे हैं ये वाली डेप्रिसिएशन वाली आरआर में से, to that extent we will transfer to additional depreciation, in that case revaluation reserve account debit, P&L account debit and to impairment loss। impairment loss तो 40 है हमारा। are you getting my point? एंड हमारा रिवॉल्यूशन रिजर्व कितना इस्तेमाल करेंगे, कोई भी एंट्री को पूरा करके बताइए क्या होगा हमारी एंट्री में, क्या होगा यहाँ पर, कोई भी बताएगा हमारी एंट्री में क्या होगा? कोई भी एंट्री को पूरा बताइए एक बार करके। एक मिनट मैं अपनी स्क्रीन देख लेता हूँ। यस, बताइए कोई भी चैट बॉक्स में, एंट्री को पूरा करिए कोई भी आप में से। मैंने बोला है अगर हम बात करें, ओके 35 एंड 5, राइट, नीतीश जी थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी, राइट। 35,000 और 35,000 एंड 5,000 एंड 40, राइट। क्यों किया हमने ऐसा, कोई भी बताएगा हमने ऐसा क्यों किया? एक अच्छा किसी ने लिखा है आरआर से 5 एंड पी&एल से 35, एंड किसी ने लिखा है पी&एल से डेबिट करेंगे 5,000। एक बार और सोच लीजिए आप सभी लोग, एक बार सभी सोच लीजिए हमारे पास रिवॉल्यूशन रिजर्व कितना अब फ्री है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास रिवॉल्यूशन बना हुआ था 40,000 का, प्लीज ध्यान से समझिएगा, एक्चुअली दो अमाउंट मिक्स हो गई है, 40 का, और उसमें से एडिशनल डेप्रिसिएशन इस्तेमाल कर लेगा 5,000। हमारे पास 35,000 का ही रिवॉल्यूशन रिजर्व अवेलेबल है अब। नीतीश जी वाज राइट, नीतीश जी का आंसर सही था। 35,000 विल शो इन द रिवॉल्यूशन रिजर्व, मींस एंट्री होगी आरआर अकाउंट डेबिट 35, पी&एल अकाउंट 5,000, बाकी का पी&एल से जाएगा, बाकी इंपेयरमेंट लॉस हमारा 40,000 हो गया। आई होप कि ये क्लियर हो गया। यहां पर किसी का कोई डाउट है तो आप नीतीश जी एक बार बोल दीजिए। मैं पार्ट बी पर जाऊंगा, यहां तक ये पार्ट ए हो गया मेरा, ओवर हो गया। यहां से यहां तक किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क मी, एनीबॉडी। किसी का भी कोई डाउट होता है यहां तक तो एक बार प्लीज बताइएगा। नीतीश जी एक बार आप बोलिएगा, किसी का कोई डाउट होता है तो दे कैन आस्क मी, दे कैन रेज एनी डाउट। Doubt or need any clarification regarding this, whatever has been discussed till now, you can write it in the chat box, please.
ओके But if they want me to unmute them, they can raise their hand in this. हाँ यस यस एक्चुअली हम फर्दर तभी आगे बढ़े तब यहाँ तक का हमारा यहाँ तक का हमारा लेक्चर एक पार्ट ए, मैंने पार्ट ए बोला इसे, पार्ट ए मेरा कंप्लीट हो गया इंड एस 36। चलिए मुझे आदित्य लगता अनम्यूट कर रहा हूँ। आदित्य जी wants to ask something. ओके ओके यस आदित्य जी प्लीज पूछिए। सर जैसे हमने यहाँ पे जो रिवॉल्यूशन रिजर्व से रिगार्डिंग जो टॉपिक पढ़ा, उसमें हम ये कह सकते हैं कि जो असेट इम्पेयर्ड हो रही है उसके रिगार्डिंग जितना भी रिवॉल्यूशन का बैलेंस बचा हुआ है, चाहे हम रिवॉल्यूशन रिजर्व की कोई भी मेथड यूज कर रहे हैं तो उतना हम रिवॉल्यूशन रिजर्व ले लेंगे। यस 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 कह सकते हैं आदित्य, बिल्कुल ठीक बोला आपने कि बेसिकली हमें चेक करना है रिपोर्टिंग डेट पर व्हेनेवर वी आर रिकॉग्नाइजिंग आवर इम्पेयरमेंट लॉस। सो इन दैट केस वी हैव टू चेक कि हमारे पास रिवॉल्यूशन रिजर्व एग्जैक्टली कितना बचता है, कितना बनता है, हम उसी को शो कर। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में 40 बन रहा था, हमारे पास 40 बचा हुआ था एंड सेकंड वन में 35 था, राइट? शायद यही पूछना चाहते थे आप। यस सर। हाँ राइट, ये आप कह सकते हैं। थैंक यू आदित्य, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। नीतीश जी, शैल आई प्रोसीड? यस सर। ओके ओके नीतीश जी, मैं एक बार रिवाइज, एज मैं टीचर हूं ना तो थोड़ी मेरी आदत भी है, स्पीकर कम टीचर, तो मैं एक बार रिवाइज कराता हूं सब कुछ मैंने आपको क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले हमने इम्पेयरमेंट लॉस डिस्कस किया। इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है? इम्पेयरमेंट लॉस होता है when we reduce the carrying amount of any asset to its recoverable amount, that's called impairment loss. Revaluation, impairment loss and तीसरा depreciation, तीनों में फर्क क्या था? Revaluation हम fair value पर मेजर करते हैं रिपोर्टिंग डेट पर किसी भी एसेट को, और वो हम कब करते हैं? जब हम फेयर वैल्यू, वो हम कब करते हैं? जब इंड एस 16 की रिक्वायरमेंट होती है, रिवैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट होती है। सर रिवैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट कब होती है? मटेरियल आइटम है, मटेरियल असेट है, तो हम उसे रिव्यू करेंगे एवरी ईयर, एनुअली करेंगे। इंडेक्स 16 मैंने बताया आपको यहाँ पर, और अगर अदरवाइज 3 to 4 ईयर्स में आप कर सकते हैं। इमैटीरियल है तो बहुत ज्यादा मतलब मटीरियलिटी एक अलग इंडेक्स है, अलग इंडेक्स की दुनिया है, वो एक अलग डिस्कशन है। उसके बाद डेप्रिसिएशन नॉर्मल वियर एंड टीयर है। एंड इम्पेयरमेंट क्या होता है? जब एग्जिस्ट करते हैं इंडिकेटर्स। सर ये इंडिकेटर कब एग्जिस्ट करने चाहिए? जब आप रिव्यू कर रहे हैं। सर हम रिव्यू कब कर सकते हैं? हम कब देख सकते हैं? आप रिपोर्टिंग पीरियड पर देख सकते हैं, या कंसिस्टेंटली आप किसी एक पर्टिकुलर डेट पे देख सकते हैं। इफ यू वांट टू सी दैट दीज इंडिकेटर्स, इफ यू वांट टू चेक दीज इंडिकेटर्स इन जनवरी मंथ, तो देन यू कैन चेक दीज इंडिकेटर्स इन जनवरी ओनली। जनवरी में आप देख रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर भी आप जनवरी में कर सकते हैं। उसके बाद हमारा एक छोटा सा पॉइंट था, कुछ एसेट ऐसी हैं जिन्हें एनुअली रिव्यू करना चाहिए, चाहे इंडिकेटर एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, और एसेट्स को हमें तभी रिव्यू करना चाहिए जब इंडिकेटर एग्जिस्ट करते हैं। इंडिकेटर एग्जिस्ट या तो एनुअल डेट पे, एक बार रिपोर्टिंग डेट पे, या फिर आप कोई एक पर्टिकुलर डेट ले सकते हैं। एंड लेकिन कुछ एसेट्स को हमें एनुअली देखना ही देखना है, चाहे इंडिकेटर एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स जो अभी तक यूज नहीं हुई है, इंडेफिनेट पीरियड है, या फिर बिजनेस कॉम्बिनेशन में कोई भी गुडविल आती है। उसके बाद क्वेश्चन था हमारा इम्पेयरमेंट लॉस जो होता है वो होता क्या? कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। कैरिंग अमाउंट क्या थी? हमारी कॉस्ट में से हमने डेप्रिसिएशन लेस किया, और रिवैल्यूएशन रिजर्व प्रॉफिट जो भी थे हमारे वो एड लेस करने के बाद वो कैरिंग अमाउंट आ गई। कैरिंग अमाउंट के बाद रिकवरेबल अमाउंट क्या थी? रिकवरेबल अमाउंट हमारी थी फेयर वैल्यू, जो 113 में हमने आज सुबह सीखी है। उससे बाइंडिंग सेल एग्रीमेंट भी हो सकता है, रिसेंट ट्रांजैक्शन की भी वैल्यू हो सकती है, और देयर आर सो मैनी मेजरमेंट, उस पर कभी हम बात करेंगे। आज आपने हालांकि सुबह उससे पढ़ा है। अगर इन एनी केस आप फेयर वैल्यू से नहीं पता लगा पा रहे हैं, नन ऑफ द मैनेजमेंट एस्टिमेट नहीं कर पा रहा, फेयर वैल्यू नॉट मेजरेबल है, सो इन दैट केस हम क्या करेंगे? वैल्यू इन यूज लेंगे। व्हाट इज द वैल्यू इन यूज? इफ वी फर्दर यूज दिस असेट further years, remaining years, so what we can get from this asset, what cash we can generate from this asset, that is called as the cash generating capacity of the asset, right? उसकी प्रेजेंट वैल्यू हम ले लेंगे, दैट्स कॉल्ड वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज के लिए हमें डिस्काउंट फैक्टर क्या लेना है हमने डिस्कस किया था, मार्केट रेट भी ले सकते हैं, और अदरवाइज आपको पहले कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने का मैंने आपको तरीका बताया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और रिस्क स्पेसिफिक जो एसेट से रिलेट करता है उसको आप देखते हुए। अदरवाइज वो नहीं है, अगर मार्केट में नहीं है तो वेटेड एवरेज भी ले सकते हैं आप। मोर देन वन प्रोबेबल है फ्यूचर कैश फ्लोज के, तो आप वेटेड एवरेज ले सकते हैं। डिस्काउंट फैक्टर की अगर हम बात करें तो मार्केट रेट भी आप ले सकते हैं, मार्केट में जो रेट चल रहा है, बोरिंग रेट चल रहा है। सो आई थिंक यही हमने पढ़ा था अभी तक।
हाँ यस, एक पॉइंट और पढ़ा था हमने फॉरेन करेंसी वाला। अगर फॉरेन करेंसी में हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज जनरेट होते हैं, फॉरेन करेंसी में हमारे फ्यूचर कैश फ्लोज जनरेट होते हैं, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे कैश फ्लोज हैं उन्हें फॉरेन करेंसी डिस्काउंट फैक्टर से फॉरेन करेंसी में हम फाइंड आउट करेंगे पहले कैश फ्लोज को, फिर उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के बाद हम उन्हें कन्वर्ट करेंगे इंडियन अपनी करेंसी में, रिपोर्टिंग करेंसी में। गॉट इट? एंड आफ्टर दैट हमने अगर मोर देन वन प्रोबेबिलिटी है कैश फ्लोज को कैश फ्लोज को निकालना, ऑप्शन बहुत सारे एंटिटी के पास, तो इन दैट केस एंटिटी वेटेड एवरेज मेथड भी लगा सकती है। हाँ, कैश फ्लोज के लिए मैनेजमेंट को एक बात याद रखनी चाहिए कि जो एविडेंस है वो सपोर्टिंग और रीजनेबल अजम्पशंस के बेस पर ही हो। मोर वेट मैनेजमेंट को एक्सटर्नल एविडेंस पे देना है। इंटरनली अगर मैनेजमेंट प्रूव भी कर रहा है कि हम कैश फ्लो इस बेस पर ले रहे हैं तो वो नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो जस्टिफिएबल नहीं है। एक्सटर्नल एविडेंस होने चाहिए। जैसे नीतीश जी मुझसे बोल दें, नीरज जी मैं आपके प्रोजेक्टर को इतने रुपए में ले लूंगा, एक्सटर्नल एविडेंस है, कंफर्मेशन है। इंटरनल एविडेंस में मेरी कंपनी का एम्प्लॉय कह रहा है, मेरी रिलेटेड पार्टी कह रहे हैं, तो ये सब इंटरनल एविडेंस में कवर अप होते हैं, इनको ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती। एंड आफ्टर दैट हमने पढ़ा था इम्पेयरमेंट लॉस को रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे। रिकॉग्नाइज करने के लिए मैंने आपको प्राइमा फेसिली P&L में बताया, लेकिन अगर आपने आरआर पहले मेंटेन किया हुआ है तो पूरा का पूरा आरआर से चला जाएगा, बचा हुआ रिमेनिंग आपका P&L में चला जाएगा। एंड अगर आप आरआर के लिए टेक्निक इंड एस 16 में प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं एडिशनल डेप्रिसिएशन वाला, तो हमने अभी एग्जांपल किया था, तो टू दैट एक्सटेंड जितना रिवोल्यूशन रिजर्व हमारा काम आ चुका है एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए यूटिलाइज हो चुका है, उसे छोड़कर बाकी का सब हम इम्पेयरमेंट लॉस के लिए यूज कर लेंगे। राइट नीतीश जी, क्लियर यहां तक? चले हम आगे। हमने रिवाइज कैरिंग अमाउंट तक यहां तक डिस्कस कर लिया है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे का क्वेश्चन है हमारा CGU पार्ट बी। CGU कोई आप में से बता सकता है व्हाट इज CGU? CGU क्या है? कोई भी आप में से? पार्ट बी बहुत छोटा सा पार्ट है और कहने के लिए बहुत बड़ा है। देखिए इंडेस में एक चीज और है, मैं सभी पार्टिसिपेंट को एक बात बोलना चाहता हूं। इंडेस में एक छोटी सी बात और है, अगर मैं इंडेस के लिए डिस्कस करूं, एक मिनट, हाँ, अगर मैं इंडेस पे बात करूं तो इंडेस एक छोटी सी बात और है। इंडेस एक समुंदर है, आप जितने इसके अंदर जाते चले जाएंगे कुछ ना कुछ नया देता चला जाएगा। इंटरलिंक्ड है बहुत ज्यादा और इसके अंदर बहुत कुछ है। तो हम ओवरव्यू कर रहे हैं इसका पूरा और कोशिश करेंगे कि आपकी जो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेरीज हैं उन्हें यहीं पर हम रिजॉल्व कर दें। क्वेश्चन है अगला, कैलकुलेशन जो होता है इम्पेयरमेंट लॉस का, वो कैश जनरेटिंग यूनिट्स क्या होती है, CGU क्या होती है? क्या आप में से कोई एक बार ट्राई करेगा? CGU क्या होता है? कोई भी आप में से ट्राई करेगा? कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होता है? कोई भी आप में से ट्राई करना चाहे? यस करिए, आदित्य ट्राई करिए, या पल्लवी आप ट्राई करिए, पल्लवी आप ट्राई करिए एक बार, पल्लवी अग्रवाल CGU को ट्राई करिए एक बार। आदित्य ने काफी बार पार्टिसिपेट किया है, जैसे भी आप तुक्का मार सकते हैं मारिए पल्लवी, मतलब आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि सब कुछ अच्छा ही होना चाहिए, बट जैसे भी आपको ठीक लगे, बट एक बार जरूर बताएं एक बार। यस कोई भी, पल्लवी या TVS शिवा प्रसाद जी, कोई भी आप में से। CGU क्या है? कैश जनरेटिंग यूनिट क्या होती है? ओके आई थिंक पल्लवी शायद नहीं ट्राई कर रहे हैं। आदित्य आप ट्राई करिए अगर आप करना चाहते हैं तो आप ट्राई करिए। CGU क्या है? एनी प्रोडक्शन यूनिट, TVS जी ने आंसर दिया है हमें। आदित्य यस बताइए, कोई और? मैं फिर आपको छोटे छोटे एग्जांपल दूंगा CGU के। ओके आई थिंक मुझे आवाज आ नहीं रही। आदित्य आप बोल नहीं रहे हैं या क्या है? ओके प्लीज अनम्यूट कर दीजिए एक बार नीतीश जी, प्लीज आदित्य को एक बार अनम्यूट करिए। नीतीश जी। सर कैश जनरेटिंग यूनिट्स। यस हेलो यस, हाँ जी बताइए। सर कैश जनरेटिंग यूनिट मेरे अकॉर्डिंग वो यूनिट्स होती है जिसके जो फाइनेंशियल्स हैं, मतलब जो इनकम है या रेवेन्यू है, वो दूसरी यूनिट से इंडिपेंडेंट होती है। ओके ओके, कहीं ना कहीं राइट आंसर है इनका भी। कोई और ट्राई करना चाहता हूँ? आदित्य गुड ट्राई, अच्छा बोला है आपने कि ये दूसरी एसेट से कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होती है। यस कोई भी और कोई ट्राई करना चाहता हूँ? चलिए तो मैं ही ट्राई करता हूँ, आप लोगों को मैं ही बताता हूँ। मैं एक ट्राई करता हूँ। CGU एग्जैक्टली CGU क्या है? कैश जनरेटिंग यूनिट क्या है? अगर मैं बात करूं तो
Sometime it is not possible to estimate the future cash flow from continuing use of one asset. जैसे मैंने एसी का एग्जांपल दिया था थोड़ी देर पहले आपको, जीरोक्स मशीन के यहाँ, याद है आप लोगों को? यस और नो तो लिख दीजिए एक बार। आज मैंने जब क्लास शुरू करी थी तो जीरोक्स मशीन का एग्जांपल दिया था आप लोगों को मैंने, और उसमें मैंने बोला था कि जीरोक्स मशीन जो है उसके साथ साथ एसी भी लगा हुआ है। अब जीरोक्स मशीन तो कैपेसिटी थी उसके अंदर जनरेट करने की कैश की, लेकिन एसी इंडिपेंडेंट जनरेट नहीं कर रहा था, लगा हुआ था, एयर फ्लो तो था, एसी से कूलिंग थी मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, बट कैश जनरेट तो मेरे यहाँ पे जो जीरोक्स मशीन थी वही करके दे रही थी। फोटोकॉपी हम करते थे, जीरोक्स करते थे और पैसे कमाते थे। क्वेश्चन है कि बहुत ध्यान से सुनिएगा, कभी कभी हम असेट के ग्रुप बना लेते हैं, ये चेक करते हैं कि जो ये ग्रुप है ये इंडिपेंडेंट कैश फ्लो दे सकता है हमें, नहीं। हम असेट को ग्रुप में बना लेते हैं, असेट्स को एक ग्रुप बना देते हैं। ये एंटिटी के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। इंडेस नहीं कहता मैं बताऊंगा कि आपको ग्रुप क्या बनाना है। जैसे जीरोक्स वाले ने जीरोक्स मशीन को डाल दिया ग्रुप में, राइट, साथ में उसने एसी को रख दिया, उसने अपनी चेयर को रख दिया, उसने जो असिस्टेंट थी उसको भी रख दिया, मतलब उसने ग्रुप ऑफ एसेट बनाया कि ये ग्रुप ऑफ एसेट है। असिस्टेंट मतलब जो ऑपरेटर था, एम्प्लॉय बेनिफिट में हालांकि आप पढ़ेंगे इसको, यहां पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो उसने कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट बनाया, ग्रुप ऑफ एसेट बनाया जो इंडिपेंडेंट। इसमें ना ये नहीं पता लग रहा जीरोक्स मशीन पैसा कमा के दे रही है, एसी कमा के दे रहा है या चेयर जनरेट कर रहा है। एक्चुअली इन सब में ये ग्रुप ऑफ एसेट है, इंडिपेंडेंट ग्रुप ऑफ एसेट है। इंडेस हमें परमिशन क्या देता है, याद रखिएगा इंडेस की लैंग्वेज क्या है, इंडेस 36 की लैंग्वेज क्या है। इंडेस 36 कहता है, अब ध्यान से सुनिएगा, एक सीजीयू स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिएबल ग्रुप ऑफ एसेट्स है। मैंने वर्ड बोला है स्मॉलेस्ट, इंडेस बोलता है स्मॉलेस्ट, ऐसा नहीं पूरी कंपनी के एसेट्स को मिक्स कर दे। एक स्मॉलेस्ट ग्रुप बना दीजिए कि इन सब चीजों को बैग में डालने के बाद, बंडल बनाने के बाद ये एक अलग कैश जनरेट कर सकती है, राइट। दैट्स कॉल्ड, इंडेस कह रहा है सीजीयू स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिएबल ग्रुप ऑफ एसेट है जो जनरेट करती है कैश इनफ्लोज, और लार्जली बहुत ज्यादा चांसेस हैं वो इंडिपेंडेंट है कैश इनफ्लोज जनरेट करने में अदर एसेट से या अदर ग्रुप से। देखिए थोड़ा बहुत तो हर कोई मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं, एक सीए कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एक सीए कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके यहां पर सीए कोचिंग इंस्टीट्यूट के यहां पर बहुत सारी एसेट है। मैं कह रहा हूं जितनी भी इंस्टीट्यूट के अंदर एसेट है सब एक सीजीयू है अपने आप में, लेकिन फिर भी उन्होंने हो सकता है दो सीजीयू बनाए हो, एक सीजीयू ए बनाया हो और एक सीजीयू बी बनाया हो। आपको मेरी स्क्रीन विजिबल है? नीतीश जी एक बार मुझे कंफर्म करिए, स्क्रीन विजिबल है ना? विजिबल है सर। ओके, उसने दो सीजीयू बना दिए अपने यहाँ पर, ए और बी। अब सीजीयू को समझने की कोशिश करिए। एंटिटी की अपनी इच्छा थी, उसने 3 एसेट्स को इस सीजीयू में डाला और 3 एसेट्स 4 एसेट्स को इस सीजीयू में डाला, बी में। पहली बात तो उसने दो अलग अलग सीजीयू बनाए। अब दोनों सीजीयू है तो एक ही एंटिटी के और एक ही इंस्टीट्यूट में है सब कुछ। इन सबकी एक इंडिविजुअल कैपेसिटी है पैसा कमाने की। इंस्टीट्यूट जो कमाएगा वो सबकी वजह से कमाएगा, कैश जनरेट करेगा। तो ऐसे तो पूरी एंटिटी एक सीजीयू हो जाती है हमेशा। लेकिन इंडेस 36 कहता है साहब आपने इन्हें दो हिस्सों में बांटा है ना, दो हिस्सों में बाइफरकेट किया है ना, ए और बी। तो ए एक स्मॉलेस्ट हिस्सा हो पहले तो, ये भी एक स्मॉलेस्ट हो, इसमें उतनी एसेट्स रखना जितनी एसेट वास्तव में इससे लिंक करती है, मतलब कम से कम एसेट्स को जोड़ना, कम से कम एसेट्स यहां रखना। एंड इन दोनों का आपस में, ये तो सच है कि ये दोनों मिलकर ही कमा रहे हैं, कंपनी में जो पैसा आ रहा है वो दोनों की वजह से आ रहा है, लेकिन इससे, इसकी वजह से जो कैश जनरेट हो रहा है उसका बहुत दूर का रिश्ता है इस वाले से जो कैश जनरेट होता है इससे। मतलब इसके इनफ्लोज अलग है और इसके इनफ्लोज अलग है। दोनों के इनफ्लो जनरेट करने के जो रिश्ते हैं वो बहुत दूर दूर के हैं, राइट। जितनी एसेट इसमें है ये अपना एक रिश्ते के साथ कैश जनरेट करती हैं। जैसे इंस्टीट्यूट अपने यहां पर एक टेस्ट सीरीज चलाता है और टेस्ट सीरीज से रिलेटेड इंस्टीट्यूट ने ढेर सारी एसेट्स परचेज की हुई हैं। एंड एक इंस्टीट्यूट कोचिंग चलाता है, कोचिंग से रिलेटेड भी इंस्टीट्यूट ने बहुत सारी एसेट ली हुई है। अल्टीमेटली तो सब कुछ इंस्टीट्यूट का ही है, कोचिंग भी और टेस्ट भी। लेकिन कोचिंग वाला जो कैश जनरेट हो रहा है उसका टेस्ट वाले कैश जनरेट से बहुत दूर का रिश्ता है,
और टेस्ट वाली जो एसेट्स हैं जितनी भी हम यूज कर रहे हैं टेस्ट लेने के लिए, उनका कोचिंग वाली एसेट से बहुत दूर का रिश्ता है जनरेट करने का। तो आई थिंक you people got it. What is CGU? CGU is the smallest identifiable group of assets that generate cash inflows that are largely independent. Largely independent, आपस में दोनों largely independent होनी चाहिए, right? Of the cash inflows from the other. I think you people got it. अच्छे से एक बार चैट बॉक्स में मुझे लिख के बता दीजिए। मेरी फितरत है ये कि अगर नहीं समझ आया तो मैं अगेन कोशिश करता हूँ, अगेन बताता हूँ आपको कि कैश जनरेटिंग यूनिट का मतलब क्या है। कैश जनरेटिंग यूनिट क्लियर हुआ आपको? जब दोनों का आपस में दूर का रिश्ता हो, है तो दोनों ही एक ही एंटिटी में, ये भी याद रखिएगा। बट इंडेस हमें कहता है कि आप 4-4, 5-5 एसेट के ग्रुप बना लो फॉर इजी गोइंग होने के लिए। इंपेयरमेंट निकालने, एंटिटी के पास एक एक 10-10 हजार एसेट्स होती हैं। अगर आप किसी एंटिटी, जब हम ऑडिट करते हैं तो हम देखते हैं एसेट रजिस्टर चेक करते हैं, तो एंटिटी के पास 10,000 भी कभी कभी एसेट होती है। इज इट और नॉट? एक बार बताइए मुझे ये भी चैट बॉक्स में लिख के। आपने देखा होगा एंटिटी के पास 10,000, 20,000 एसेट्स हैं। अगर आप एक एक एसेट पे, ईच एसेट पे इंपेयरमेंट करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एंटिटी क्या करेगी? ग्रुप बना लेगी, स्मॉलेस्ट आइडेंटिफिएबल ग्रुप ऑफ एसेट्स, और उसको दूसरे ग्रुप से जिसके कैश इनफ्लोज होने का लार्जली इंडिपेंडेंट चांस है। गॉट इट? एवरीबॉडी गॉट इट? कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में क्या चेंजेस है। तो अगर हम बात करें सीजीयू क्या, अच्छा चलिए मेरे क्वेश्चन का आंसर दीजिए और चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे। मैं एक बस कंपनी हूं, बस चलती है हमारी अपनी, हम बस प्रोवाइड करते हैं। हमें एक स्कूल ने ऑफर दिया कि उसे बस चाहिए, राइट? हमने एग्रीमेंट किया स्कूल के साथ। स्कूल ने हमसे बोला 5 बस चाहिए हमें, 5 बसेस चाहिए हमें, अलग अलग 5 रूट्स के लिए चाहिए। एंड स्कूल ने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि स्कूल हमें 5 बसेस का फिक्स करेगा, साल का 10 लाख रुपए देगा। 5 बसेस का साल का 10 लाख रुपीस देगा, स्कूल ने फिक्स कर दिया। 5 बस चाहिए, 5 अलग अलग रूट्स पे चाहिए, अलग अलग रूट्स की 5 बसेस की अलग अलग रूट पे हैं। 5 बस में से एक बस का जो रूट है वो थोड़ा सा खराब रूट है, वहां पे हमें लॉसेस जाते हैं। और अलग अलग हर 5 रूट का हम कैश भी पता लगा सकते हैं, कैश फ्लो क्या है, समझ रहे हैं? हमारे पास क्या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। आई वुड लाइक टू आस्क यू, 5 बसेस का एक सीजीयू बनेगा या अलग अलग सीजीयू है? ये अलग एसेट में लिख के बताइए चैट बॉक्स में। आई होप मेरा क्वेश्चन पहले क्लियर हुआ होगा। 5 बसेस का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है हमसे, और वो 5 बसेस के लिए एक ही हमें 10 लाख रुपए देंगे। बट हमने 2-2 लाख रुपए बांट लिया, हमने अलग अलग कर लिया। बट मैंडेटरी है, एंटिटी स्कूल कह रहा है चाहिएगी तो 5 ही बस, चाहे लॉस जाए किसी एक स्पेसिफिक रूट पे, हम कर्टेल नहीं कर सकते उस सिंगल रूट को। टीवीएस जी चेंज करिए आंसर। अब देखिए मेरी बात को सुनने के बाद, हम एक भी रूट को चेंज नहीं कर सकते, एक भी बस को कट नहीं कर सकते। 5 सेपरेट सीजीयू बनेंगे या एक ही सीजीयू बनेगा। हमें अगर स्कूल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है तो 5 बसों देनी होंगी, चाहे हमें किसी एक बस से लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हमें उन्हें 5 बस देनी ही होंगी। अब मैं शायद समझा पा रहा हूं मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं। आई थिंक आपको मेरी बात समझ आनी शुरू हो गई होगी, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं आपसे। 1 मिनट रुकिए, मैं स्क्रीन को ले लेता हूं अपने पास। यस, आपको शायद मेरी बात क्लियर हो रही होगी। 5 बसेस हैं, 5 अलग अलग रूट हैं, हम किसी भी एक रूट को कर्टेल नहीं कर सकते, किसी भी एक रूट को काट नहीं सकते, कोई भी एक रूट हमारा कट नहीं सकता, राइट? कोई भी एक रूट हमारा कट नहीं हो सकता। अगर कोई भी एक रूट कट नहीं हो सकता तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है 5 बसेस का एक साथ। अगर मैंने क्वेश्चन आपके सामने, फिर मैं रिपीट कर देता हूं, एंटिटी के पास ऑप्शन नहीं है कर्टेल करने का एक भी बस रूट को, सो वी कैन नॉट आइडेंटिफाई द इंडिपेंडेंट कैश फ्लो फ्रॉम ईच रूट। एक रूट में लॉस जा रहा है, एक में प्रॉफिट जा रहा है, राइट? हम अलग अलग सीजीयू में इन्हें नहीं कर सकते क्योंकि हम किसी भी रूट को कर्टेल नहीं कर सकते। हाँ, अगर एंटिटी के पास ऑप्शन है कि वो एक बस को हटा दे, 2 बसेस को हटा दे, तो वो सीजीयू अलग अलग हो जाएंगे। आई थिंक सीजीयू समझ आना शुरू हुआ होगा आपको। सीजीयू क्या है, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं। बताइए, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, एक सीए कोचिंग इंस्टीट्यूट है,
सीए का, उसकी 4 ब्रांचेस है ABCD, राइट। देखते हैं अब आप बता पाते हैं नहीं। हर ब्रांच का अपना फर्नीचर है, अपनी फैसिलिटी है, अपना सेट, सब कुछ अपना है हर ब्रांच के पास। सारी एसेट ब्रांच के पास अपनी अलग अलग है, अपनी कैपेसिटी है। मैं पूछना चाहता हूं क्या यहां पर 4 इंडिपेंडेंट CGU बन सकते हैं या एक ही CGU बनेगा? जल्दी बताइए। हर ब्रांच के अलग अलग CGU बनेंगे या एक ही CGU बनेगा? 4 ब्रांचेस हैं, अलग अलग फर्नीचर है, अलग एसेट है, अलग ऐसा। अब यहाँ पर 4 सेपरेट CGU बनेंगे। आई थिंक CGU की बात मैं आपको समझा पाया हूं। CGU क्या होता है? क्वेश्चन आता है इंप्रूवमेंट लॉस CGU का कैसे कंप्यूट होगा? बहुत आसान। एज अ होल CGU की कैरिंग अमाउंट, पहला स्टेप। एज अ होल CGU का कैरिंग अमाउंट। नंबर 2, CGU के कैरिंग अमाउंट के बाद रिकवरेबल अमाउंट पूरे CGU का। नंबर 3, इंपेयरमेंट लॉस पूरे CGU का। आई थिंक आपको पता चल रहा होगा। पूरे CGU का एज अ होल क्या निकाल लेंगे आप? इंपेयरमेंट लॉस। चौथा, इस इंपेयरमेंट लॉस को कैरिंग अमाउंट में, 3 असेट है अगर CGU में ABC, तो तीनों असेट की कैरिंग अमाउंट की रेशो में आप बाइफरकेट कर दोगे इंपेयरमेंट लॉस को, और हर असेट की अपनी नई रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ जाएगी। गॉट इट और नॉट? जल्दी बताइए, समझ आया आपको? नहीं आया? ये वाला बात समझ आई आपको जो मैंने अभी बोली है? पूरे CGU का कैरिंग अमाउंट, पूरे CGU में 3 असेट थी, पूरे CGU का मिक्स करके कैरिंग अमाउंट, पूरे CGU का रिकवरेबल अमाउंट, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट, पूरे CGU का इंपेयरमेंट लॉस। CGU का इंपेयरमेंट लॉस को आप बाइफरकेट करोगे कैरिंग अमाउंट की रेशियो में तीनों असेट्स में, और रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ जाएगी हर असेट की अपना अपना लॉस लेस करने के बाद। गॉट इट? राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगर कॉर्पोरेट एसेट है, गुडविल है, कॉर्पोरेट एसेट है। ये गुडविल और कॉर्पोरेट एसेट क्या होती हैं? जो क्या होती है, कोई बताइए। इंपेयरमेंट वाले लेक्चर के हिसाब से, इंपेयरमेंट वाले चैप्टर के लिए गुडविल का मतलब क्या होता है? इंपेयरमेंट के लिए क्या गुडविल ताकत रखती है हमेशा सेपरेट कैश जनरेट करने की? गुडविल तो गुडविल तभी तक है जब सब कुछ है। अगर रिलायंस की कंपनी में रिलायंस का सब कुछ है तभी तक रिलायंस की गुडविल है। अकेली गुडविल बहुत जनरेट नहीं कर पाती, बट कभी कभी करती है जिनकी गुडविल बहुत अच्छी होती है। हल्दीराम, रिलायंस फ्रेंचाइजी बिजनेस देते हैं। नॉर्मली गुडविल पोजीशन में नहीं होती सेपरेट कैश जनरेट, इंडिपेंडेंट रेवेन्यू जनरेट करने की पोजीशन में नहीं होती। ऐसे केस में हम गुडविल को एलोकेट करते हैं रीजनेबल बेसिस पर। पहले क्लैरिटी हुई? कॉर्पोरेट एसेट होती है रीजनेबल बेसिस पर। मैंने आपको बोला नॉर्मली गुडविल जनरेट नहीं कर सकती इंडिपेंडेंट कैश, इंडिपेंडेंट रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाती गुडविल या कॉर्पोरेट एसेट्स। कॉर्पोरेट एसेट्स होती हैं जो सब जगह काम आएंगी। जो पूरे कॉर्पोरेट की एसेट है वो इंडिपेंडेंट जनरेट नहीं कर पाएगी, वो मिक्स हो जाएगी सभी CGU में। अच्छा एक बात बताइए, थोड़ी देर पहले मैंने बोला एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, और चैट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वो टेस्ट सीरीज भी लेता है, 2 सेगमेंट है उसके, उससे रिलेटेड उसकी सारी एसेट्स अलग है, और उसकी कोचिंग सर्विसेज भी है, उससे रिलेटेड भी उसके पास ढेर सारी एसेट्स हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं जो कोचिंग एसेट्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट की गुडविल है, वो टेस्ट सीरीज वाली गुडविल होती है या कोचिंग सर्विस वाली होती है? गुडविल इंडिपेंडेंट की जा सकती है क्या कि टेस्ट सीरीज की गुडविल है ये कोचिंग सर्विस की गुडविल है? यस और नो? जल्दी बताइए, क्या ये बताया जा सकता है ये गुडविल टेस्ट सीरीज की है या कोचिंग सर्विस की? ये तो एंटिटी की गुडविल है, कॉमन है दोनों के लिए। राइट TVS जी, राइट सोनिया, राइट अभिषेक, राइट ललित, एवरीवन राइट। ये सर्विस जो है, ये जो कोचिंग है, ये जो गुडविल है, ये कॉमन है सबके लिए। आई थिंक आप गुडविल को पकड़ पाए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसलिए स्टेप क्या बनती है जब हम इंपेयरमेंट चैप्टर पढ़ते हैं, यहां पर इंपेयरमेंट लॉस फाइंड आउट करते हैं, तो क्वेश्चन आता है कि जी इसमें क्या स्टेप है? पहला वही कैरिंग अमाउंट निकालिए पूरे के पूरे CGU की, प्लस में गुडविल भी ऐड करिए इन कैरिंग अमाउंट में, पूरे CGU की असेट में गुडविल भी। क्लियर हो गया? गुडविल कैसे प्लस होगी सर? एलोकेट कर दीजिए गुडविल रीजनेबल बेसिस पर। 3 CGU है, 3:2:1, जैसा भी आपको लगता है। सर हमें लगता है मींस मैनेजमेंट एस्टिमेट करता है, मैनेजमेंट जज करता है, राइट? रीजनेबल बेसिस पर करना होगा, फिर वही एविडेंस दिखाने होंगे मैनेजमेंट को किस बेस पर उसने गुडविल को एलोकेट किया है, राइट? रिकवरेबल अमाउंट आएगी पूरे इंस्टीट्यूट की, पूरे एंटिटी की।
इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा। इंपेयरमेंट लॉस विद गुडविल आया है या विदाउट गुडविल, कौन बताएगा? ये इंपेयरमेंट लॉस विद गुडविल आया है या विदाउट गुडविल? इसमें गुडविल वाला इंपेयरमेंट भी लॉस में इंक्लूड है या नहीं है? यस और नो बताइए जल्दी से। इस लॉस में गुडविल वाला भी इंपेयरमेंट लॉस इंक्लूड है या नहीं है? इंक्लूड है, क्योंकि मैंने अगर मान के चलिए पूरे सीजीयू की वैल्यू 10 लाख है और साथ में गुडविल है 2 लाख आई है सीजीयू के हिस्से में, तो सीजीयू की रिकवरेबल अमाउंट 9 लाख है। तो इसमें यह भी पता चल गया थोड़ी बहुत गुडविल भी इसके अंदर इंपेयर्ड हुई है, राइट। विद गुडविल इसकी वैल्यू है। क्लैरिटी हुई है? सबको क्लैरिटी हुई? 3-4 लोगों ने रिप्लाई किया है, 3-4 पार्टिसिपेंट्स ने रिप्लाई किया है, सभी को क्लियर हुई? ये इंपेयरमेंट लॉस विद गुडविल शो होगा हमारा, ये इंपेयरमेंट लॉस विद गुडविल आएगा। एंड जैसे ही ये इंपेयरमेंट लॉस विद गुडविल आएगा तो क्वेश्चन आता है कि इसको कैसे एलोकेट करना है। जैसे इंपेयरमेंट लॉस आया, सबसे पहले ये लॉस गुडविल से ही एडजस्ट होगा। इन कितनी गुडविल शो हो रही है ऊपर? 2 लाख रुपए। तो पूरा का पूरा इंपेयरमेंट लॉस पहले 2 लाख का गुडविल से एडजस्ट हो जाएगा। इंपेयरमेंट लॉस आफ्टर गुडविल कितना बचा? एक्चुअली गुडविल ना फिक्टिटियस एसेट्स होती है। गुडविल ऊपर ऐड भी करी और देखो नीचे लेस भी कर दी, अगर आप समझ पा रहे हैं। पहले गुडविल जनरेट करी, ऐड करी, फिर लेस कर दी। अब जो इंपेयरमेंट लॉस बचा 1 लाख का, ये हम कैरिंग अमाउंट में सभी एसेट्स में बाइफरकेट कर देंगे। गॉट इट और नॉट बताइए जल्दी से। ये बात समझ आई आप लोगों को? हमने 10 लाख का सीजीयू था हमारा, मैं दोबारा बोलता हूँ 10 लाख का सीजीयू था, जिसके अंदर ABC बहुत सारी एसेट थी। एक डी नाम की गुडविल थी, वो मैंने ऐड कर दी, 12 लाख हो गया सीजीयू की वैल्यू। फिर मैंने इंपेयरमेंट मैंने देखा कि रिकवरेबल अमाउंट कितना है। सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट 9 लाख था, 3 लाख का इंपेयरमेंट लॉस। सबसे पहले ये इंडेक्स बोलता है जो इंपेयरमेंट लॉस है वो गुडविल से एडजस्ट करिए, राइट। और जैसे ही मैंने गुडविल से एडजस्ट किया तो बाकी का बचा कुछ इंपेयरमेंट लॉस 1 लाख बना, जिस 1 लाख को मैं इन तीनों में बांट दूंगा। आपको समझ आ गया? इनकी कैरिंग अमाउंट की रेशो में, जैसे अभी किया था। ये समझ आया सबको? यस और नो जल्दी बताइए। ये समझ आ गया? एक बार हम इस कैरिंग अमाउंट में और रिवाइज कैरिंग अमाउंट फाइंड आउट कर लेंगे। गॉट इट? दैट्स कॉल्ड कॉर्पोरेट एसेट्स गुडविल को बाइफरकेट करना। क्वेश्चन आता है कि जब हम कॉर्पोरेट एसेट्स या गुडविल को बाइफरकेट करते हैं तो ये रीजनेबल बेसिस पर करना है। रीजनेबल बेसिस तो हमने अभी डिसाइड कर लिया, मैनेजमेंट एस्टिमेट होगा और मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, और अनएलोकेबल जितना भी होगा वो पार्ट ऑफ लार्ज सीजीयू बन जाएगा। अगर इन एनी केस अनएलोकेबल हो रहा है, एलोकेट ही नहीं हो रहा, तो जो भी लार्ज सीजीयू है उसके पास चला जाएगा। ये बात समझ आई आप लोगों को? अनएलोकेबल हो रहा है किसी भी वजह से तो लार्ज सीजीयू का हिस्सा बन जाएगा अच्छे से। कौन सा वाला? आपका जो अनएलोकेबल है। क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज को निकालते वक्त क्या इंक्लूड होगा, क्या एक्सक्लूड होगा। एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज को निकालते वक्त याद रखिएगा जो कैश फ्लो को जनरेट करने के लिए जो भी चीजें जरूरी थी, जो भी एक्सपेंस जरूरी थे, वो सब इंक्लूड होते चले जाएंगे हमारे, राइट। जैसे कि जितने भी इंकर्ड हुए जनरेट करने के लिए, कैश फ्लो को एसेट्स करने के लिए, वो सब हमारे इंक्लूडिव आइटम होंगे। जैसे असेट को डिस्पोज करने के लिए, राइट, जितना भी नेट कैश फ्लोज है या डे टू डे एक्सपेंसेस है हमारी असेट को यूज करने वाले। कॉर्पोरेट असेट्स अगर पार्ट ऑफ सीजीयू है और सीजीयू इंक्लूड कर रही है इसे कैश फ्लो ऑफ एसेट में, मींस हम पढ़ के आ रहे हैं जब हम कैलकुलेट करेंगे कैश फ्लोज तो कौन कौन से आइटम इंक्लूड होंगे और एक्सक्लूड होंगे कैश फ्लोज में। तो जितने भी आइटम कैश फ्लोज में इंक्लूड क्या होंगे और एक्सक्लूड क्या होंगे, आप बताएंगे कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो एक्सक्लूड हो जाएगा। जैसे मैं बताता हूं, एक अच्छा एग्जांपल मेरे माइंड में आया। एक्सपेंस क्या? लायबिलिटी। हमने एक एसेट परचेज करी 10 लाख की और एसेट को परचेज करते वक्त 4 लाख का लोन ले लिया, राइट। एसेट परचेज करी है 10 लाख की, 4 लाख का लोन ले लिया। अभी के अभी आज की आज ही इस एसेट की रिकवरेबल अमाउंट है 8 लाख, राइट, 8 लाख। इस एसेट को परचेज किया था 10 लाख और थोड़े दिन बाद ही 8 लाख है और लोन अभी भी स्टिल लगा हुआ है हमारा 4 लाख का। तो एएस कहता है इसे बेटर है आप प्रेजेंट कैसे करें। 6 लाख की एसेट है यहाँ पर 4 की है और नो इम्पेयरमेंट। आपको ये बात क्लियर हुई? उससे एसोसिएटेड लायबिलिटी भी आप एसेट में से रिड्यूस करके तब इम्पेयरमेंट करिए। अगर उससे जो बंदा ये एसेट लेगा हमसे
उसको ये लाइबिलिटी भी लेनी होगी अगर लोन अभी भी स्टिल आउटस्टैंडिंग है? यस और नो, जल्दी बताइए। जो बंदा ये एसेट लेगा हमसे, उसको ये लाइबिलिटी भी लेनी होगी, हमारे लोन के साथ ये लेना होगा, और ऑटोमेटिकली इस पर कोई इंपेयरमेंट नहीं हुआ या हुआ इंपेयरमेंट? हाँ मैं गलत बोल गया, 6 से 4 पे पहुंचा, इंपेयरमेंट तो हो गया, 2 लाख का इंपेयरमेंट हो गया, सॉरी इंपेयरमेंट हो गया। व्हाट मैंने बताया, एसोसिएटेड लाइबिलिटी लेस करके चलना है आपने। क्लैरिटी हुई आप लोगों को? एसोसिएटेड लाइबिलिटी आपने रिड्यूस करनी है इसमें से, तब आपने इंपेयरमेंट निकालना है। ये क्लियर है? जल्दी बताइए यस और नो। आपने 10 लाख की एसेट ली, उससे रिलेटेड 4 लाख का लोन आउटस्टैंडिंग है अभी, क्लैरिटी हो रही है? 10 लाख की कैरिंग अमाउंट आ रही है, 4 लाख का लोन आउटस्टैंडिंग है अभी भी। जिस दिन आप इंपेयरमेंट इंडिकेटर एग्जिस्ट थे उस दिन 8 लाख रिकवरेबल अमाउंट थी। जो हमारी एसेट लेगा साथ में 4 लाख का उसके पास एसोसिएट लाइबिलिटी भी जाएगी। सो इन दैट केस इंपेयरमेंट लॉस विल बी 2 लाख। तो कुछ छोटे छोटे आइटम्स होते हैं जो इंक्लूड और एक्सक्लूड होते हैं। मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस। जैसे हमारे इंपेयरमेंट लॉस के इंडिकेटर एग्जिस्ट थे, ऐसे रिवर्सल के इंडिकेटर है। एक चीज हाँ वेरी इंपॉर्टेंट मैं भूल गया, अगर गुडविल एक बार लाइफ में इंपेयर्ड हो जाए, कोई बताएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? देखते हैं कौन बताएगा। गुडविल एक बार इंपेयर्ड हो गया, ओके, टीवी ने हमसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाई शुड द बायर टेक द लोन ऑल्सो? हाँ अगर बायर लोन नहीं ले रहा है, देखो एसोसिएट लाइबिलिटी जाएगी उसके साथ। आपने जैसे कोई कार खरीदी हुई है और कार पे आपकी 10 किश्तें अभी रह रही हैं, आपको मैं कार का एग्जांपल दूंगा, 10 इंस्टॉलमेंट अभी आपकी पेंडिंग है बैंक की। तो आप कार अगर सेल कर रहे हैं तो एग्रीमेंट आप बायर को, या तो वो किश्तें आपको भरनी होंगी तब आप कार बेच सकते हैं। अगर आप कार को ऐसे ही बेच रहे हैं तो बायर को एसोसिएट लाइबिलिटी भी लेनी होगी। टीवीएस क्लियर हुआ आपको? या आपके एग्रीमेंट पर डिपेंड करता है, राइट? अगर उसके साथ एसोसिएट है तो वो लेगा ही और उसे लेनी होगी, वरना बैंक ऐसे कार क्यों बेचने देगा आपको? आई थिंक टीवीएस क्लियर हुआ होगा ये। हाँ यस, अगर आप आस्क कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली, तभी मैं कह रहा हूं अगर सेलर को लोन क्लियर करना पड़ेगा तो सेलर के लिए, बिल्कुल सही बोला आपने, तो सेलर के लिए रिकवरेबल अमाउंट कम नहीं हो गई उस एसेट के साथ। और सेलर की एसेट सेल ही कब होगी टीवीएस जी? कब सेल होगी? जब वो लोन पे कर देंगे, नहीं तो सेल ही नहीं हो सकती। इसलिए सेलर को इस एसेट को जब भी सेल करना है, इस एसेट से जितना पैसा आएगा साथ साथ पहले 4 लाख रुपए देना होगा। एसेट से नेट कितना, क्योंकि एसेट के साथ एसोसिएट है वो लायबिलिटी। आई थिंक क्लियर हो गया होगा टीवीएस जी, डाउट क्लियर हो गया होगा, राइट? यही मैं बोलना चाह रहा हूँ, रिकवरेबल तो कम हो गया ना ऑटोमेटिकली। यस, चलिए आगे चलते हैं। रिवर्सल और लास्ट टॉपिक, बाकी का इस इंडेक्स में छोटे छोटे टॉपिक होंगे, वो आपने एक बार खुद रीड करने होंगे, और कभी फ्यूचर में हमें लगा तो हम दोबारा से इस पर बात करेंगे और आपके डाउट लेंगे। मैंने बड़े बड़े टॉपिक सारे इसके डिस्कस कर लिए। मैंने आपको जैसा बताया था, इंडेक्स बहुत बड़ी दुनिया है, 2 घंटे में पूरा इंडेक्स करना अपने आप में, मैं नीतीश जी को सल्यूट करता हूं, उन्होंने बिजनेस कॉम्बिनेशन जैसा इंडेक्स, नीतीश जी बिजनेस कॉम्बिनेशन ही लिया था शायद आपने टॉपिक, राइट? 2 आवर्स में बिजनेस कॉम्बिनेशन प्रवीण जी ने लिया था, आई ओके टेकन 109। ओके ओके सर, ओके 109 अपने आप में बहुत बड़ा इंडेक्स है ये भी, राइट? तो दैट्स ग्रेट, क्योंकि इंडेक्स में कोई अनलिमिटेड पोटेंशियल, और मैं तो आपको रिटर्न में और करा रहा हूँ पीपीटी से ज्यादा। मेरी पीपीटी रह गई थी और मैं सीधा स्टूडियो में आ गया था अपने, मेरी एक्चुअली क्लास चल रही थी, क्लास के बाद ऑटोमेटिकली मैं इसके साथ सेशन में लग गया आपके साथ। बट मुझे ये बता दीजिए, मेरे को फीडबैक दे दीजिए, ऐसे आपको समझ तो अच्छे से आया है ना? क्लियर अच्छे से हुआ है ना? एक्चुअली मैंने टाइम इन्वेस्ट भी किया, और आफ्टर दैट आपको अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर बेनिफिट नहीं रहा इस वेबिनार का। आपको क्लैरिटी हुई इससे? शायद मैंने रिटर्न में सब कुछ बताया तो ज़्यादा मोर क्लैरिटी हुई होगी। हालांकि बाद में मैं आपको पीपीटीज वगैरह भी दे सकता हूँ इसकी, अगर आपको चाहिए तो। मेरे पास एवरीथिंग इज रेडी विद मी। तो अगर हम बात करें, गुडविल एक बार इंपेयर्ड हो जाए तो गुडविल कभी भी रिवर्स नहीं हो सकती। अगर आपने गुडविल को एक बार डाउन कर दिया, गुडविल 10 लाख की थी और आपने इंपेयर्ड कर दिया 4 लाख की गुडविल, तो गुडविल कभी भी रिवर्स नहीं हो सकती। नंबर 1 पहले तो ये याद रखिएगा, राइट? गुडविल कभी भी रिवर्स, गुडविल कभी भी हमारी रिवर्स नहीं हो सकती। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जितनी भी अदर असेट है हमारी, वो हमारी रिवर्स हो सकती है, बट अगर इंडिकेटर एग्जिस्ट है आपकी बारी रिवर्सल के, तब वो हो सकती है। आपकी बारी, हमारे पास जो इंडिकेटर है वो किसके होने चाहिए? रिवर्सल के। और आपको समझ आ गया होगा, वही इंडिकेटर मतलब रिवर्स हो रहे हैं।
अगर पहले मार्केट वैल्यू लेस हो रही थी, अब मार्केट वैल्यू बढ़ रही होगी। साहब एक बात बताओ, हम रिवैल्यू क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा ना इंडिकेटर एग्जिस्ट है। हमने रिव्यू किया उसी डेट पर, जिस डेट पर पिछले साल हमने रिव्यू किया था, इस साल रिव्यू किया तो मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, राइट, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो रही है। तो इंडिकेटर जैसे एग्जिस्ट हैं, समझ रहे हैं, रिवर्सल के, तो वही इंडिकेटर सारे रिवर्स हैं। इंटरेस्ट रेट कम हो गया है मार्केट में, राइट, वो सारी चीजें अगर आ गई हैं तो इंडिकेटर तो एग्जिस्ट करते हैं, और इंडिकेटर एग्जिस्ट करते हैं तो रिवर्सल को बड़े ध्यान से समझिएगा, रिवर्सल ऑफ सी, रिवर्सल ऑफ कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट। क्या फॉर्मूला बनता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर हमारी कोई एसेट 10 लाख की है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी एसेट हमारी 10 लाख की है और उसकी लाइफ 10 ईयर्स है, आपको विजिबल है ना प्रॉपर, 10 ईयर्स, सॉरी 10 लाख की है, 10 ईयर्स है, स्क्रैप वैल्यू नील है, फिर वही हो गया, उसका डेप्रीशिएशन 1 लाख हो गया पर एनम। उसकी रिकवरेबल अमाउंट, उसकी रिकवरेबल अमाउंट 3 साल बाद 5,60,000 हमें गिवन है। पहले बताइए इंपेयरमेंट लॉस कितना हो गया, जल्दी से बताइए, कोई भी चैट बॉक्स में लिखकर। 3 साल बाद उसका रिकवरेबल अमाउंट 560 हमें मिल गया है। इंपेयरमेंट लॉस हमारा कितना हो गया, जल्दी बताइए, 1,40,000, राइट। 7 लाख उसकी कैरिंग अमाउंट आ रही होगी 3 साल बाद, 5,60,000 उसका रिकवरेबल अमाउंट है, राइट। तो नेट हमारे पास आ गया 1,40,000, राइट। क्वेश्चन आता है, अब उससे आगे चलते हैं क्वेश्चन को। इंडिकेटर इसके 2 साल बाद, 2 ईयर्स लेटर, इंडिकेटर्स एग्जिस्ट करते हैं इंपेयरमेंट के, राइट, और रिवर्सल के, सॉरी, रिवर्सल के इंडिकेटर एग्जिस्ट कर रहे थे, और उस दिन रिकवरेबल अमाउंट आ रही थी इस असेट की 4,40,000। आई थिंक मेरी बात समझ आ रही है आपको। 4,40,000, आप लोगों को लग रहा होगा 2 साल बाद अगर इंडिकेटर एग्जिस्ट हो रहा है रिकवरेबल के, 4,40,000 रिकवरेबल अमाउंट है, 440। पहले तो कैरिंग अमाउंट पे पहुंची है 2 साल बाद की। 2 साल बाद की कैरिंग अमाउंट क्या आ रही होगी, आपने 560 पर एसेट को कैरिंग अमाउंट आ गई होगी, पहले तो आपकी 2 साल पहले 560 कैरिंग अमाउंट होगी, बचे कुछ 7 साल थे आपके। अगर आप 2 साल को और लेस कर दो तो 160 लेस हो जाएगा, और ये बचेगा 4 लाख। आई थिंक मैंने सही किया है या गलत कर दिया है, कोई बताएगा मुझे। हमारी जो रिवाइज कैरिंग अमाउंट थी वो 560 थी, रिमेनिंग ईयर्स हमारे 7 थे, एवरी ईयर का डेप्रीशिएशन हमारा 80,000 हो गया आई थिंक, और 2 ईयर्स के बाद मैंने बात करी है आपसे, तो 2 ईयर्स के आफ्टर 2 ईयर्स, राइट, मैंने आपको बताया 160 का डेप्रीशिएशन लेस होकर वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4 लाख, राइट। एवरीवन गॉट इट? यस, आगे चलते हैं। 4 लाख की हमारी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन है कि 2 साल बाद इसकी वैल्यू आ रही है 4 लाख, और ये रिकवरेबल अमाउंट आ रही है 440। आपको ये पहले समझ आ गया, रिवर्सल हो रहा है, आपको ये समझ आ रहा है। अब क्वेश्चन आता है रिवर्सल करेंगे कैसे हम इसका। रिवर्सल होता है इंड AS 36 के अकॉर्डिंगली लोअर ऑफ 2 पे, ध्यान से सुनिएगा, लोअर ऑफ 2 पे। अगर हम पहले ही इस असेट को इंपेयर लॉस बुक ना करते, कोई भी मुझे बताइए, तो आज उसकी कैरिंग अमाउंट क्या आ रही होती। अगर आज से 2 साल पहले हम इंपेयरमेंट लॉस बुक ना करते तो आज उसकी कैरिंग अमाउंट क्या आ रही होती, कोई भी बता दीजिए जल्दी से। अगर हम 2 ईयर्स बैक उसे इंपेयरमेंट लॉस बुक ना कर रहे होते तो उसकी कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही होती, 7 लाख डिवाइडेड बाई 7, 5 लाख, मतलब ये सभी पहुंच गए यहां तक, 5 लाख आ रही होती। यस, क्लियर यहां तक। एंड उस केस में रिकवरेबल अमाउंट तो तब भी 440 आ रही होती। मेरी बात समझ आ रही है। आज इसकी कैरिंग अमाउंट इतने पर शो होना है इसको, आज 2 साल बाद। लेकिन अगर हम बात करें, अगर हम इसे रिवर्स ना करते तो हमारी कैरिंग अमाउंट कितनी आ रही होती, 5 लाख, और हमें शो करने के लिए बोल रहे हैं 440 पर, तो हम शो तो इस पे ही कर पाएंगे 440 पर। पहले तो लोअर ऑफ 2 मतलब OR और
या तो क्या, अगर हम इंपेयर ना करते तो कैरिंग अमाउंट जो आ रही होती, या आज जितने पर शो करने के लिए वो बोल रहे हैं, आज ये 5-10 पर भी तो बोल सकते थे शो करने के लिए। पहले आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। आज ये भी तो बोल सकते थे कि रिकवरेबल अमाउंट 510 आ रही है जी। अगर 510 आ रही होती तो मैक्सिमम हम इस असेट को इसकी ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट तक ले जा सकते थे, 5 लाख तक। लेकिन इसकी कैरिंग अमाउंट तो 440 आ रही है, सॉरी रिकवरेबल अमाउंट, तो हम इसे मैक्सिमम 440 तक ले जा सकते हैं। क्लियर सभी को? इसे बोलते हैं इंक्रीमेंटल कैरिंग अमाउंट। क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंटल कैरिंग अमाउंट। तो मींस 440 तक आप ले जा सकते हैं। आप 4 पे पहुंच गए हैं, 440 पे ले जा सकते हैं। 40,000 की एंट्री आप कर देंगे, 40,000 से आप इंपेयरमेंट लॉस को क्या कर देंगे? रिवर्स। क्लियर सभी को? 40,000 से आप इंपेयरमेंट लॉस को रिवर्स कर देंगे। यस और नो पहले बताइए जल्दी से, क्लियर और नॉट? मैंने बोला अगर हम इंपेयरमेंट लॉस ना करते पहले तो ये 5 तक पहुंचता मैक्सिमम, और आज वो 440 का रिकवरेबल अमाउंट है, हमें 440 के लिए बोल रहे हैं तो हम कर सकते हैं 440 पर, लेकिन नहीं कर सकते थे 440 तक। अगर 440 की जगह रिकवरेबल अमाउंट हमें 510 दे रखी है तो हम मैक्सिमम इसे, जो इसका इंपेयरमेंट लॉस नहीं होता तब जो कैरिंग अमाउंट आती वहां तक ही ले जा सकते थे, इससे ज्यादा नहीं ले जा सकते थे। तो हम मैक्सिमम रिवर्सल कितना कर सकते हैं? 40,000 का। यहाँ पर क्लियर सभी को? यस और नो? एक ही स्टूडेंट का जवाब आया है, विकास का, एक ही पार्टिसिपेंट का। सभी को क्लियर? मेरी तरफ से रिवर्सल वाली बातें क्लियर हो गई। रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस है जो हम इनको कैलकुलेट करेंगे अगेन एंड अगेन, और बेसिकली जो इस इंडेक्स से रिलेटेड जो बेसिक बातें हैं वो हमने क्लियर कर ली हैं। आप नॉर्मल बातों को इनको डिस्कस कर सकते हैं, बहुत सारी नॉर्मल बातें भी हैं इस इंडेक्स में। जो मेजर इश्यूज हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। कभी कभी जब हम फर्स्ट टाइम अडॉप्ट करते हैं इंडेक्स 101 को, लगता है हमारा, उस केस में अगर कोई गुडविल आ रही होती है, बिजनेस कॉम्बिनेशन की गुडविल आ रही होती है या कोई भी गुडविल आ रही होती है, तो वही सेम ट्रीटमेंट है, गुडविल को हम ऐड करेंगे और एलोकेट करेंगे। नीतीश जी हम क्वेरी सेशन कर सकते हैं, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स वगैरह आप लोग देख सकते हैं क्या है, बाकी नॉर्मली अब हम क्वेरी सेशन कर सकते हैं नीतीश जी। और थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आपकी कोई क्वेरीज होती हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेजर लेवल पे हमने इसको डिस्कस कर लिया है, और इसके अंदर छोटी छोटी भी कुछ बातें हैं, मैंने आपको पहले भी बोला। आप ये मत सोचिएगा कि ये बिल्कुल खत्म हो गया है, आपने इसको पढ़ना होगा। और फिर भी कभी कोई डाउट होते हैं तो एंड में मेरा नंबर, मैं अपना नंबर बता देता हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं। 9312316009 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, 9896343577। राइट, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको लगता है कि कोई क्वेरी आती है आपको किसी भी इंडेक्स से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं। राइट, ये नॉर्मल कॉल के लिए है। कॉल आप 8 बजे से 10 के बीच में कर सकते हैं, और कल ना करिएगा, बुरा ना मानिएगा, होली है। राइट, आइए जल्दी से हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच नीतीश जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस योर पार्टिसिपेंट ऑडियंस एंड ब्यूटीफुल पार्टिसिपेंट्स। बहुत अच्छे रिस्पॉन्सिव थे सभी लोग, और मुझे बड़ा अच्छा भी लगा आप लोगों के साथ डिस्कशन करने में। थैंक यू नीतीश जी, प्लीज ओवर टू यू। Thank you, Neeraj ji. Now I request all the participants if they have any query relating to these index. I am giving you the right to unmute yourself. So if anyone wants to ask any query, they can unmute themselves and ask it, or they can write it in the chat box as well. हाँ जी विकास जी। सर जैसे हम प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं सर, ये बैलेंस शीट में एक साइड हमारा रिवैल्यूएशन रिजर्व शो हो रहा होता है और एक साइड हमारी असेट्स होती हैं। तो हम किसी हमारी पर्टिकुलर असेट्स में इम्पेयरमेंट होता है तो क्या हम दूसरी विकास जी आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। नीरज जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। यस विकास जी बोलिए। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बैलेंस शीट में हमारा एक तरफ रिवैल्यूएशन शो हो रहा होता है, एक तरफ असेट्स होती हैं, तो क्या हम किसी दूसरी असेट्स का रिवैल्यूएशन यूज कर सकते हैं
एक किसी पर्टिकुलर असेट्स के इम्पेयरमेंट को सेट ऑफ करने के लिए, या फिर उसी असेट्स का रिवैल्यूएशन यूज कर सकते हैं सर हम? अच्छा, आप कहना चाह रहे हैं एक असेट से हमारा कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व हुआ, राइट? और यस सर। दूसरी तो हमारे रिवैल्यूएशन रिजर्व बैलेंस शीट में जाके सब मिक्स ओसीआई में चले जाते हैं। अगर आप देखेंगे सभी के सभी ओसीआई में चले जाते हैं। लेकिन अगर आप अप्रोच लगा रहे हैं, देखिए आप दूसरी एसेट, आप कहना चाह रहे हैं अगर आप दूसरी एसेट को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो वो वाला रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ पूछ रहे हैं विकास? एक्चुअली आपका क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर करिए। यस सर। नहीं नहीं नहीं, तब आप नहीं कर सकते। नॉर्मली उसमें कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होती बैलेंस शीट में, हालांकि सारे रिवैल्यूएशन रिजर्व मिक्स हो जाते हैं। लेकिन आपने इंटरनली ध्यान, जब आप किसी एसेट को सेल करेंगे जिससे रिलेटेड आपने आरआर क्रिएट किया था, तो आपने डिस्क्लोज किया होगा, तो आप उस रिवैल्यूएशन रिजर्व को रेवेन्यू रिजर्व में, पर्टिकुलर उस रिवैल्यूएशन रिजर्व को ही रेवेन्यू रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। सभी को नहीं करते, उनको इस्तेमाल नहीं कर सकते आप उस वक्त पर। ओके ओके सर। एंड सर इसी केस को अगर हम सीजीयू वाइज देखें तब कर कि हम सकते हैं, राइट, तब कर सकते हैं, तब हो मतलब जाएगा। सीजीयू में जितने भी एसेट्स हैं आपस में तो उनका हम, राइट, जैसे आप टैक्स में कुछ एक चीज पढ़ते थे, स्लम सेल। अगर आपने स्लम सेल कुछ किया है, स्लम में कुछ लिया है, तो सारी एसेट्स सब कुछ उसी के अंदर कवर अप हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इंडिविजुअली एसेट को डील कर रहे हैं आप, तो उससे रिलेटेड, क्योंकि आपने उससे रिलेटेड रिवैल्यूएशन रिजर्व ऐड किया हुआ है एसेट के अंदर, राइट? ओके। एंड सर मेरा एक और डाउट था हाँ, यस कि प्लीज। जो हमारी एक टर्म हम यूज करते हैं रिवैल्यूड अमाउंट, और एक टर्म यूज करते हैं सर हम रिकवरेबल अमाउंट, राइट, सर इन दोनों में हम वैसे डिफरेंस क्या कर सकते हैं कि मतलब मीनिंग में? देखिए रिवैल्यूड अमाउंट तो 100% इंड AS 16 के अकॉर्डिंगली रिवैल्यूड होती है। एक्चुअली रिवैल्यूड अमाउंट कोई टर्म नहीं होती, कैरिंग अमाउंट एक टर्म होती है। अगर मैं बोलूं रिवैल्यूड अमाउंट या रिकवरेबल अमाउंट कोई टर्म नहीं है, ये टर्म इंटरनल टर्म है, ये टर्म कैलकुलेशन टर्म है। ये बैलेंस शीट के अंदर ऐसे नहीं आता रिवैल्यूड अमाउंट। बैलेंस शीट तो कैरिंग अमाउंट बोलेगी जब भी बोलेगी, बट ये दोनों ही पर्पस जो यूज होते हैं, रिवैल्यूएशन या फिर रिकवरेबल, ये दोनों यूज होते हैं कंसर्न इंड AS की कैलकुलेशन के लिए। जैसे आपका जो रिकवरेबल अमाउंट है वो इंड AS 36 में यूज हो रहा है कैलकुलेशन में, एंड जो आपका रिवैल्यूड वाला कॉन्सेप्ट है वो आपका इंड AS 16 में भी यूज हो रहा है, 38 में भी यूज हो रहा है। वो अलग अलग इंड AS में, वो काफी इंड AS में यूज हो रहा है रिवैल्यूएशंस में। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रिवैल्यूड अमाउंट हमारा अपना एक फैक्टर है बोलने का तरीका, अदरवाइज कैरिंग अमाउंट होती है एसेट बैलेंस शीट में रिपोर्टिंग डेट पर, किस पर कैरी ओके करती सर, है, राइट? थैंक यू सर। यस यस, थैंक यू TVS शिवाजी, आपने बड़ा अच्छा सा मैसेज किया, थैंक यू सो मच। और किसी को कुछ पूछना हो, कुछ बोलना हो, आप थैंक यू भी बोल सकते हैं, राइट? किसी को कुछ पूछना हो। ओके नीतीश जी, प्लीज आप प्रोसीड करिए। Thank you, sir. Thank you for a wonderful session. It was truly an enlightening session for all the members as well. And I also thank all the participants who have joined us for this session as well as for all the past 3 sessions. What I'll do, I'll try to collate all the PPTs from all the 4 sessions for the 4 speakers, as well as I'll share the video of all the 4 sessions with all the participants. And I once again thank Neeraj ji for sparing his थैंक यू सर, थैंक precious यू। time for all of us. And I also wish all the participants a very happy Holi, and Neeraj ji also a very happy Holi. And थैंक यू सर, I would also wish all the participants a good luck for their exam, for the upcoming exam, for to be a registered valuer. Thank you, sir. थैंक यू सर, थैंक यू सो I'm, मच। yeah. थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स, थैंक यू नीतीश जी, थैंक यू सो मच, Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू।